I am going to broadly divide this lecture into three parts. In the first part, right, which will dominantly be representing this lecture, wherein I will be talking about theories of social movement. Second part में I will be talking about revolutions. Third part में I will be talking about new social movements and I will be trying to compare it with old social movements, right? तो सबसे पहले हम बात करेंगे theories of social movement की, जिसमें हम देखेंगे नील्स मेल्सर वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से मूवमेंट्स को, सोशल मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं. यहाँ पे ही टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, राइट. बेसिकली उनका एक वैल्यू एडिशन मॉडल था, वो क्या है हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, राइट. सी इन मोस्ट ऑफ दिस थियरीज आई विल कंटिन्यूसली बी टॉकिंग अबाउट द टर्म रिलेटिव डेप्रिवेशन, राइट. रिलेटिव डेप्रिवेशन एक अलग से थियरी है, बट आई विल बी अकोमोडेटिंग दैट थियरी इनटू दिस थियरी, राइट. आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट इट सेपरेटली. फिर हम बात करेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी की, राइट, विच सेज एन अफेक्टिव social movement, right, is premised on effective organization and mobilization of resources for the success of this movement, right. These resources could be cultural, moral, material, human, right, etc. ठीक है. And this theory argues that movements are not just an outlet of emotions or outlet of unrest or anger. They are not merely based on emotions. Rather, it involves rational actors who are using means and orientation, who are using effective means in order to attain their goals, the objectives of the movement, right. So these are instrumental in nature, involving rational actors. फिर हम पढ़ेंगे मास सोसाइटी थ्योरी. ये बोलती है कि why do people participate in social movements or why do people launch social movements. तो ये बोलते हैं कि man in the modern societies or highly modern societies are becoming extremely lonely, right. There is a decrease in mechanical solidarity, decrease in collective consciousness, decrease in community sentiments. So social movements are a way for men to get out of social isolation and to ensure social attachment. Through movement you will be communicating with other people, right, developing emotional bonds, personal bonds, right. Whereas men in the modern society is living in a more impersonal virtual relationships, right. Market societies, man is highly utilitarian, focused on individualism, his own self interest. यहाँ पे आप collective interest pursue करेंगे. So this social movements provide an avenue for men, right, to temporarily get out this kind of frustrating situation, right. फिर हम बात करेंगे हर्बर्ट ब्लूमर. he'll be talking about life cycle of movements, कि movement ये एक life cycle होती है. Plus he will also be talking about, he categorizes social movements, right, into two types. One is active social movements and another is expressive social movement. उसको देखेंगे. उसके बाद we'll be talking about revolutions, right. Revolutions मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, it is a form of social movement. Revolutions bring revolutionary social change. तो इसके जो मेजर स्कॉलर हैं, राइट, एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थी थेडा स्कोपकोल. शी राइट्स अबाउट रेवोल्यूशंस, राइट. तो बेसिकली हम उनको डील करेंगे. प्लस हम इसको थेडा स्कोपकोल के वर्क्स को, स्कोपकोल के वर्क्स को हम लिंक करेंगे नील्स मेल्सर से. और हम विल बी टॉकिंग अबाउट मार्क्स, लेनिन एंड स्टालिन. विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन. विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन एज एडवोकेटेड बाय मार्क्स, राइट. लास्ट में I'll draw a comparison between old and new social movements, right. This is another categorization in which we can typify social movements, right. मल्टीपल बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज करते हैं सोशल मूवमेंट्स को. तो इसमें सबसे मेन स्कॉलर है जर्गन हैबरमास, राइट. फिर हम रजनी कोठारी को भी देखेंगे, इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और साइमन हॉल्सवर्थ क्या बोलते हैं इनको भी देखेंगे. सो दिस इज द ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ द लेक्चर, राइट. सो नाउ वी विल ट्राई टू स्टडी the various perspectives or theories of social movement. ठीक है. Basically we'll be taking a look into four perspectives. So firstly I'll be starting with the theory of social movement. Social movement कैसे emerge होती हैं, कैसे develop होती हैं, कैसे mature होती हैं और कैसे end होती हैं, right. इसमें different scholars का different perspective है, right. So we'll be studying the perspectives of all these scholars, right, at least the major scholars. फर्स्टली theories of social movement. सबसे पहले बात करेंगे नील्स मेल्सर की, राइट. नील्स मेल्सर एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देते हैं, राइट. ही एनालाइजेस एंड डिस्क्राइब्स
सोशल मूवमेंट्स फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। और वो बोलते हैं कि जो सोशल मूवमेंट्स है दीज आर एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, राइट। जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ स्ट्रेन आ गया है, राइट। इट इज अंडर स्ट्रेन, इट इज अंडर स्ट्रेस, राइट। और द सोशल मूवमेंट्स इज एन आउटकम ऑफ दिस स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेन मतलब देर आर सम सॉर्ट्स ऑफ कंट्राडिक्शंस that are there in the social structure or social system, some sort of conflict, some sort of social unrest is there in the social system, some sort of social ferment is there in the social system, right. And due to this structural strain there is a lack of value consensus when there are contradictions and conflicts are there, right. There is a lack of, we can say, integration and solidarity, right, within the social system, order, stability and integration. So when you accommodate this structural strain and try to resolve this structural strain, it will lead to social change, right. It will, now resolution of structural strain is what? It will lead to social change, ठीक है। अगर आप, now this social change will be reformatory or evolutionary और ग्रेजुअल और इंक्रीमेंटल सोशल चेंज होगा अगर ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेन क्या है, राइट, इट इज कंटिन्यूअसली अकोमोडेटेड, इट इज कंटिन्यूअसली एड्रेस्ड, राइट। हमने पढ़ा भी था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट पार्सन्स, जब ये स्ट्रेन को आप कंटिन्यूअसली अकोमोडेट करते हो सोशल सिस्टम में, साइबरनेटिक हियरार्की ऑफ कंट्रोल, राइट, व्हेन इट गेट्स इंट्रोड्यूस्ड विद इन द सोशल सिस्टम, राइट, और उसको अकोमोडेट करके क्या है, चेंज होते हैं सोशल सिस्टम में, वेरियस चेंजेस आते हैं, राइट। इंक्रीमेंटल चेंजेस आते हैं, ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं। तो आप अगर कंटिन्यूअसली स्ट्रेन को अकोमोडेट करोगे, कंटिन्यूअसली स्ट्रेन को एड्रेस करोगे, राइट, देन देयर विल बी ए ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी इंक्रीमेंटल सोशल चेंज। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ रिफॉर्मेटिव सोशल चेंज ऑफ चेंजिंग सम एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट। अगर इसको आप कंटिन्यूअसली एड्रेस कर रहे हो, राइट, incremental structural strain is continuously accommodated or addressed by the social system, so it will lead to what? Structural strain आएगा, social change लेके आएगा, right, फिर क्या है, नया equilibrium अचीव होगा, फिर social strain डेवलप होगा due to various social unrest और social ferment that is there in the social structure और contradiction conflicts होंगे, तो उसको further आप इंट्रोड्यूस करोगे, राइट, उसको फर्दर अकोमोडेट और एड्रेस करोगे और फिर नया इक्विलिब्रियम आएगा और ऐसे सोशल चेंज होगा। दिस इज नोन एज मूविंग और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर स्ट्रक्चरल स्ट्रेन एड्रेस नहीं किया जाता है, राइट, तो क्या होगा, लार्ज स्केल और रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज आएगा, क्योंकि क्या है, यू आर अलाउइंग दिस स्ट्रक्चरल स्ट्रेन टू बिल्ड अप इन द सोशल सिस्टम, टू इंक्रीज इन द सोशल सिस्टम। तो सोशल अनरेस्ट इंक्रीज करेगा, सोशल फर्मेंट इंक्रीज करेगा और अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन आएगी व्हेन दिस इज गोइंग टू गेट एक्सप्लोडेड, राइट, इन फॉर्म ऑफ अ रिवोल्यूशन। तो जब स्ट्रक्चरल स्ट्रेन हाई होता है, व्हेन इट इज नॉट कंटिन्यूअसली एड्रेस्ड, देन इट विल लीड टू रिवोल्यूशन। तो थ्रू हिज थियरी ही इज बोथ ट्राइंग टू एक्सप्लेन इवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड नॉट सिंपली द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जहां पे आप सोशल रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज की बात ही नहीं करते, व्हेन यू फोकस ओनली ऑन कंसेंसस, ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन, राइट। नाउ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन लीड्स टू सोशल मूवमेंट्स, people participating in social movements, gathering on the streets, protesting, right, indulge in various forms of agitation and demonstrations. When this continues over a period of time, then it will lead to some sort of social change, right. पर एक protest को, right, which is sporadic, which is localized, which is specific, अगर इसको डेवलप करना आपको सोशल मूवमेंट में, इसको कन्वर्ज और कन्वर्ट करना सोशल मूवमेंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 conditions need to be satisfied for emergence. Multiple conditions need to be satisfied for emergence and maturity of social movement, right. अगर ये condition satisfied न होगी, if not, social movement will prematurely die out or it will not become full-fledged social movement. वो full-fledged social movement नहीं बनेगी। तो बोलते हैं social movement passes through 6 stages, right, 6 stages में, और एक स्टेज से दूसरी स्टेज ट्रांजिशन होगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, राइट। तो हर एक स्टेज में क्या है, कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए फॉर वन स्टेज टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड
और फॉर अराइवल ऑफ सक्सेसिव स्टेज देयर शुड बी सम वैल्यू एडिशन, कुछ ना कुछ एडिशन होता रहना चाहिए, तभी वो इमर्ज करके फिर ग्रेजुअली डेवलप और मेच्योर होगी जैसे ये वैल्यू एडिशन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, 6 सक्सेसिव स्टेजेस है, वैल्यू एडिशन मॉडल है, विद ईच सक्सेसिव स्टेज वैल्यू एडिशन होता है। तो ऐसे विजुअलाइज करो, S1 स्टेज, S2 स्टेज, S3, S4, S5, S6, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, और अल्टीमेटली लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते वो क्या है, कंप्लीटली 5th और 6th स्टेज तक पहुंचते पहुंचते वो मैच्योर करेगी, राइट, वो डेवलप हो जाएगी, उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, राइट, और उसका क्या है, एक फुल फ्लेजेड सोशल मूवमेंट बनेगी, राइट। तो ये 6 स्टेजेस हम पढ़ेंगे, राइट। फर्स्ट स्टेज इज S1 स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस। स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस का मतलब ये है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें सोशल मूवमेंट होगी, जिसमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेन होता है, दिस सोशल स्ट्रक्चर शुड बी कंड्यूसिव, इट शुड बी राइप, इट शुड प्रोवाइड राइट एनवायरनमेंट फॉर इमर्जेंस, birth of social movements, and not just emergence but also development and maturity of these social movements, right? तो social structure should be conducive and ripe for emergence and development of social movement, right? तो इसमें हम 2 चीजें पढ़ सकते हैं, एक है political opportunity structure, whether the social structure it gives you a political opportunity to assemble, right, to engage in collective action, राइट, whether it gives you an opportunity or not, ठीक है। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि some political systems are conducive for emergence, maturity, development of social movements and some are not conducive। जैसे मैं बात करूं डेमोक्रेसी, राइट, डेमोक्रेसी क्या देता है, it gives space and opportunity for vibrant civil society, for active citizenship, तभी तो आप लोग कलेक्ट हो पाओगे, कलेक्टिवाइज हो, वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी होगी, तभी सोशल मूवमेंट्स हो पाएंगी, राइट। इट गिव्स स्पेस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट गिव्स स्पेस फॉर द राइट टू डिसेंट, राइट नॉट टू एग्री विद द मेजॉरिटी ओपिनियंस, राइट टू डिसेंट वो देता है स्पेस आपको। इट गिव्स द राइट टू असेंबल, दिस इज असेंबल एंड प्रोटेस्ट पीसफुली, it is giving you an opportunity. The constitution in the democracies are giving you an opportunity. Article 19, freedom of speech and expression, right to dissent, right to assemble and protest peacefully. So this democratic political system, this is ripe, conducive for emergence of various kind of social movements, right? और जनरली ये देखा जाता है कि ये जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है डेमोक्रेसी में, it is continuously released, it is continuously accommodated, right? By the government, by the authorities, it is continuously accommodated. So it is a kind of a, आप में social ferment आ रहा है, unrest आ रहा है, right, dissatisfaction आ रहा है, तो it is continuously addressed. You are continuously, there is an outlet for your grievances. You can actually assemble and protest and demand. So यहाँ पे क्या है, एक safety valve है for venting out of grievances, राइट। तो यहां पे क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन इज कंटिन्यूअसली अकोमोडेटेड, और जनरली डेमोक्रेसीज में रिवॉल्यूशंस नहीं आती, उसमें क्या होती है, रिफॉर्मेटरी सोशल मूवमेंट्स होती है, रिवॉल्यूशनरी नहीं होती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेन क्या है, इसको कंटिन्यूअसली एड्रेस किया जाता है, अकोमोडेट किया जाता है सिस्टम में, और इसीलिए क्या होता है, यहां पे रिफॉर्मेटरी सोशल चेंज होता है। नाउ कुछ ऑटोक्रेटिक सिस्टम्स लाइक ऑटोक्रेसीज एंड डिक्टेटरशिप्स, राइट, ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, राइट, टू प्रोटेस्ट। तो यहां पे क्या है, द सोशल मूवमेंट्स आर ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, RSA, ऑफ द स्टेट मशीनरी, कंटिन्यूअसली और ब्रूटली सप्रेस्ड। यू आर नॉट अलाउड सिविल, देयर आर नो सिविल लिबर्टीज, देयर आर नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देयर इज नो डिसेंट, राइट। तो ऐसे इसमें क्या होता है, तो ग्रीवेंसेस, अनरेस्ट, फ्रस्ट्रेशन आर बॉटल्ड अप, दे टेंड टू अक्यूमुलेट, राइट। और एक ऐसा टाइम आता है कि जैसे ही जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो वीक हो जाती है, तो ये फूटता है, ये जो अंडरलाइंग सोशल अनरेस्ट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन जो बढ़ चुका था, ये क्या है, इट लीड्स इन वायलेंट, यू कुड से इरप्शन, राइट। एज सून एज सेंट्रल अथॉरिटी बिकम्स वीक, सेंट्रल अथॉरिटी वीक होगी तो
स्ट्रक्चर ने, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने अपॉर्चुनिटी दे दी और दिस लीड्स टू इरप्शन ऑफ रेवोल्यूशन, वायलेंट ओवरथ्रो, राइट, सोशल, और यहां पे क्या है, सोशल फर्मेंट और एनर्जी बहुत हाई होती है। रिवोल्यूशंस को बोला जाता है जिनमें सोशल फर्मेंट और एनर्जी बहुत हाई हो, शॉर्ट टर्म बस्ट होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा वायलेंट इरप्शन होता है। इमोशंस हैव बीन सप्रेस्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इट लीड्स टू अ लार्ज स्केल सोशल चेंज इफ सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल होता है। तो देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, इट वॉज लाइक अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, बिकॉज British machinery was continuously suppressing the anger and unrest and grievances of the people. They were bottled up. They are continuously bringing various kind of social manipulation and economic manipulation, right? And this led to building up of frustration, discontent and anger. This was not addressed. Structural strain became very high. Ultimately, it led to eruption of this energy in form of revolt of 1857 which was violent and there was so much bloodshed in that. तो इसके बाद इसलिए कांग्रेस को, आईएनसी को 1885 में देयर इज अ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, राइट, इसलिए अलाउ किया गया कि थ्रू कांग्रेस आईएनसी एज ए हेडक्वार्टर ऑफ द सोशल मूवमेंट पीपल विल बी अलाउड टू वेंट आउट देयर ग्रीवेंसेस, विल नॉट बी लिसनिंग टू देम, हम थोड़ा थोड़ा उनको क्या है हल्के फुल्के कैरेट देते रहेंगे, राइट, और हम प्रोलॉन्ग करते रहेंगे अपने रूल को। दिस वाज द मेंटालिटी ऑफ द ब्रिटिश एज टू व्हाई दे अलाउड आईएनसी टू फॉर्म और टू फॉर इट्स बर्थ टू टेक प्लेस, राइट, ठीक है। सेकेंड इज सी स्ट्रक्चरल कंडीशननेस कब होती है, व्हेन देयर इज अ डिवीजन और हायर फॉल्ट लाइन ऑफ सोशल सिस्टम, डिविजन्स और हायर फॉल्ट लाइंस इन सोशल सिस्टम्स, व्हेन क्या है सोशल सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर में क्या है कन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शंस हो, फॉर एग्जांपल क्लास की कॉन्ट्राडिक्शंस हो, मल्टीपल क्लासेस हो, इनइक्वालिटी हो उसमें, राइट, कास्ट इनइक्वालिटीज हो उसमें, राइट, रिलीजन हो, मल्टीपल रिलीजन्स, मल्टीपल इथनिसिटीज हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस हो, right, there are vast multiple fault lines in the society. इसलिए बोला गया था when Britishers left the country, multiple scholars, political scientists were of the view that India as a nation won't be able to survive because there are multiple fault lines in the society, right, and it is ultimately going to divide into multiple nations. But why did not it happen with India? Why? Because our constitution is so vibrant, it allows space for people to vent out their grievances. Different languages can vent out, स्टेट से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, डिफरेंट इथनिसिटीज कैन वेंट आउट देयर ग्रीवेंसेस, दे कैन बी अकोमोडेटेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इथनिसिटीज स्पेशली नॉर्थ ईस्ट दे आर प्रोटेस्टिंग, दे आर फाइटिंग फॉर सेपरेट कंट्रीज, सेपरेट नेशन स्टेट, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज देम टू हैव ऑटोनॉमी, आर्टिकल 371, राइट, टू हैव ऑटोनॉमी, टू rule as per your customary laws, rules and regulations. So Indian constitution provides a scope for that, and that is why India did not break up, right, because constitution was so beautifully written. Plus also Nehru is criticized nowadays, but through the very initial phase, right, it was a very fragile era for India as a nation. It could have broken up. That is why Nehru promulgated secularism, right, accommodation of different views, freedom of speech and expression, right, inculcating democratic values. So that era was very fragile and Nehru as a leader emerged, right, ठीक है। Second, and this is what Pakistan lacked, this is exactly what Pakistan lacked, right, structural, second stage का भी structural strain, right, see political opportunity structure होना चाहिए, division होनी चाहिए, fault lines होनी चाहिए, right, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन मतलब सी आपका अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर भी है और फॉल्ट लाइंस भी है, लेकिन क्या है अनरेस्ट और एंगर होना चाहिए लोगों में, राइट, सी क्लास है लेकिन क्लास इनइक्वालिटीज ज्यादा नहीं है तो अनरेस्ट एंगर नहीं होगा, कास्ट है, राइट, लेकिन अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है, राइट, ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन इज प्रिवेंटेड, राइट, तो वहां पे सोशल अनरेस्ट नहीं होगा, राइट। तो स्ट्रक्चर, पहला तो स्ट्रक्चर कंडीसिव होना चाहिए, फिर स्ट्रक्चर में स्ट्रेन होना चाहिए, मतलब देयर इज शुड बी सम फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट, डिससैटिस्फैक्शन, अंडरलाइन रिजेंटमेंट,
a feeling of relative deprivation, right? People feeling relatively deprived in comparison to others, right? In comparison to others. For example, मैं आपको बताता हूँ, जाट्स और मराठास की जो सोशल मूवमेंट हुई, right? Even they are the most one of the most influential and dominant communities in their respective states, but there was a feeling of relative deprivation among the Jat and Maratha community, right? Lack of economic development also led to low amount of jobs, right, or low quantum of jobs. They were working in private sectors, getting lower salaries, right? Lower education opportunities were there. So they started comparing themselves to the other caste who are enjoying the fruits or benefits of reservation, right? So they started feeling relatively deprived in comparison to others, and that is why they started this this Jat or Maratha Jati Andolan. Women in comparison to men feeling relatively deprived. तो कंडीशन होनी चाहिए, राइट? आपके फीलिंग होनी चाहिए कि यू आर रिलेटिवली डिप्राइव्ड, ठीक है? एक अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसी सी सिटीजन्स ऑफ टूनिशिया, जब जैस्मिन रेवोल्यूशन आई, अरब स्प्रिंग का स्टार्ट हुआ था, देयर वर लार्ज स्केल social movements across the Middle East in which people of these autocracies, they were fighting for civil liberties, for onset of democracy, right, for various rights. They wanted to change their political structures. ये ऐसा क्यों था? Because in the era of globalization they can actually compare their economic and various other conditions, or especially these political conditions, lack of civil rights, lack of autonomy, lack of freedom, lack of liberties with citizens of, let's say, democracies, for example Western Europe or USA, ठीक है? रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर। ऐसे आप बात करो मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया की, राइट? ठीक है? नाउ देयर यहाँ पे एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन भी हो सकता है और रिलेटिव डेप्रिवेशन दोनों हो सकता है, राइट? ठीक है? रिलेटिव डेप्रिवेशन की एक अलग ही थियरी है, बट आई विल नॉट बी टीचिंग दैट, आई एम ट्राइंग टू अकोमोडेट इट हियर। ऐसी मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के जो मेन सूत्रधार थे, मेन लोग थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे एम्फसाइज कर रहे थे, दीज वर पीपल हु वर वेस्टर्न एजुकेटेड, दे गेन्ड वेस्टर्न एजुकेशन, दे वर इनलाइटेंड बाय आइडियाज ऑफ वोल्टेयर, रूसो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड देयर बाय दे कुड, वहां से उनके अंदर एक फीलिंग आई कि वी आर रिलेटिवली डिप्राइव्ड इन कंपैरिजन टू ब्रिटिशर्स, we are not given enough political representation, right? We are not allowed to participate in politics and administration of the country. We are only given lower posts. That is why they are also advocating on Indianization of services. Middle class intelligentsia, right? INC में। या फिर relative deprivation ऐसे भी हो सकता है in comparison to some imagined or ideal state, right? For example, communist utopia. वर्कर्स को जब आइडियोलॉजी दी कार्ल मार्क्स ने कि देयर कुड बी एन यूटोपियन वर्ल्ड, राइट, इन विच देयर विल बी एब्सोल्यूट इक्वालिटी, इन विच वर्कर्स विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, इन विच कैपिटलिस्ट विल नॉट हैव ओनरशिप ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो इमेजिन करने लगे उस आइडियल स्टेट को, तो दे स्टार्टेड फीलिंग रिलेटिवली डिप्राइव्ड because there was vast gap between their reality, current reality, and the expectations, and that led to a feeling of this relative deprivation. तो relative deprivation या फिर कुछ अनरेस्ट हो, एंगर हो, राइट, डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन, अंडरलाइंग रिजेंटमेंट हो किसी भी वजह से, कास्ट एट्रोसिटीज, कास्ट ऑपरेशन की वजह से, क्लास ऑपरेशन की वजह से, या फिर माइनॉरिटीज में ड्यू टू डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटीज ऑफ रिलीजन, या फिर लैंग्वेज में, या फिर इथनिसिटी में, या फिर रीजन में कि हमारा रीजन ही क्या है, इज अंडर डेवलप्ड, other regions are developed, there is no equal development, so this leads to a sort of unfolding or concretization of underlying conflict and contradictions. ये conflict और contradiction possibility थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे concretization हो जाता है उसका, क्योंकि these become realities here. अगर यहाँ पे क्लास इनइक्वालिटी ज़्यादा नहीं होती, कास्ट इनइक्वालिटी नहीं होती, रिलीजियंस माइनॉरिटी राइट्स दिए जाते, इथनिसिटीज, नॉर्थ ईस्ट वॉज कंपैरेटिवली डेवलप्ड, राइट, लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्मेशन होता स्टेट का, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? सो दिस अनरेस्ट इज बेस्ड ऑन सम अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव कंडीशंस. दिस इज नॉट अ फ्रेम्ड अप और इमेजिनरी
कि कुछ नहीं है, हमने बस एनविसाज करके ही हो रहा है। रिलेटिव डेप्रिवेशन इज ऑल्सो रियल, एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन इज ऑल्सो रियल, इट इज बेस्ड ऑन सम एक्चुअल अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव कंडीशंस। कास्ट ऑपरेशन हमेशा से ही होता आया है, लेकिन 20th सेंचुरी में ही क्यों मूवमेंट स्टार्ट हुई, राइट, वो हम पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे थर्ड स्टेज, जनरलाइज्ड बिलीफ, राइट। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ सोशल मूवमेंट्स। तो यहां पे Smeltzer will be talking about the third stage. It is the stage of generalized belief. हमने ये देखा कि जो सोशल अनरेस्ट था, सोशल फर्मेंट था, इट वॉज सिमरिंग अंडरग्राउंड, राइट। क्लियरली लोगों को पता नहीं था कि ये सोशल अनरेस्ट और जो फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन है वो किस लिए है। उसको डिफाइन नहीं किया गया था, उसको आउटलाइन नहीं किया गया था, उसको कंसेप्चुअलाइज नहीं किया गया था, राइट। Let me give you an example, right? We suffer from various kind of problems in our day-to-day life, right? Psychological, spiritual, mental, right? Various kind of dilemmas. हमें पता है कि there are something which is wrong, right? लेकिन उसको clearly हम define और demarcate और outline नहीं कर पाते हैं, right? उसको consciously pursue नहीं कर पाते हैं। The moment you start writing these thoughts, right, on paper, right, डायरी राइटिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, writing down your thoughts, you will become a more mature person, you will be in sync or you will be aware or conscious of your feelings, the underlying sentiments, right, उसका क्या नेचर है, क्या कॉजेज है, क्या रीजंस है, वो क्या है, इमर्ज होके आने स्टार्ट होंगे वंस यू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्रेसिंग दीज थॉट्स। अदरवाइज दीज थॉट्स आर जस्ट लाइंग अंडरग्राउंड। तो सिमिलरली यहां पे वो बात करते हैं कि सोशल अनरेस्ट, सोशल फर्मेंट, इट इज मेड विजिबल ड्यूरिंग दिस स्टेज, इट इज एक्सप्लेन्ड, इट इज क्लैरिफाइड, इट इज आउटलाइंड, इट इज एनालाइज्ड थ्रेडबेयर, पीपल आर मेड अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ इट, राइट, थ्रू आइडियोलॉजी। नेचर क्या है इस डिस्कंटेंट का, राइट, इस सिमरिंग डिस्कंटेंट का, रेज का, स्ट्रेन का, एंगर का, राइट, ये फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन का, इसके कॉजेज क्या है, सोर्सेज क्या है, रीजंस क्या है। फिर टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचर और हाउ यू आर डिफाइनिंग द सिचुएशन, यू विल बी प्रपोजिंग सॉल्यूशंस। नाउ ये किसका काम होता है सोसाइटी में, बुद्धिजीवी लोगों का, फिलोसोफर्स का, इंटेलेक्चुअल्स का, राइट, पीपल मेक अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, एक्टिविस्ट का, राइट। तो इससे क्या है, क्लैरिटी आती है, एम्बिग्यूटी चली जाती है, राइट, ठीक है। सो पीपल बिकम अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ देयर अंडरलाइंग सेंटिमेंट्स, देयर फ्रस्ट्रेशन विच वाज टिल नाउ इट वाज नॉट डेवलप्ड, नॉट प्रॉपरली क्लैरिफाइड, इट वाज अमोर्फस, ठीक है। तो अभी क्या है, दिस becomes a generalized belief, right, it becomes widespread in society, people are shaped by this belief, a kind of a generalized belief, generalized ideas or kind of a generalized consciousness is there in the minds of the people, especially who are facing or suffering from this kind of discontent or resentment or feeling of relative deprivation, for example workers, blacks in case of America, Dalits in case of India, right, ठीक है। So it becomes widespread in society, it is shared by large number of people, now this is going to shape their thoughts and consciousness, right। तो ये जो people who are affected उनके बीच में एक common consciousness आएगी, एक generalized belief आएगा, common beliefs आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। कास्ट मूवमेंट्स, राइट, मेजरली उससे पहले भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी और बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी कास्ट मूवमेंट्स या इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की तरह से देखा जाता है। लेकिन स्पेशली इन द 20th सेंचुरी कास्ट मूवमेंट्स इन इंडिया इमर्ज्ड ऑन अ लार्ज स्केल, राइट, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यहां पे 20th सेंचुरी में क्या है, प्रायर टू दैट इट वाज नॉट दैट एक्सप्लॉइटेड people were exploited, caste oppression was there, caste exploitation was there, but people prior to that exploited people had no clear idea of their objective reality, सब कुछ धुंधली थी पिक्चर,
तो यहां पे कौन आए? बी आर अम्बेडकर। आप पढ़ोगे उनका कास्ट पर्सपेक्टिव, अनटचेबिलिटी के बारे में क्या बात करते हैं, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, कंप्लीट डिसमेंटलाइजेशन ऑफ कास्ट फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। तो उन्होंने जब अपनी थियरीज दी, बी आर अम्बेडकर ने किताबें लिखी, वर्क्स लिखी, स्पीचेस दी, तब लोगों को पता चला ओके दीज आर द रीजंस और नेचर कॉजेज फॉर आवर एक्सप्लॉयटेशन। सो दिस इज नॉट सम फिक्शन विच इज क्रिएटेड बाय आइडियोलॉजी और आउट ऑफ you can say imaginary reality. No, it is an objective reality which was underlying or simmering underground, right? And now it is made clear. ऐसी परियार movements, caste movements, right? हम पढ़ेंगे caste movements, SNDP और all these movements के बारे में पढ़ेंगे, right? सत्य शोधक समाज will be looking into all that in paper 2. फिर S4 is precipitating factor. Now this is very important according to Niels Melzer. This is very important for social movement, right? Now what is precipitating factor? Now this represents an event or incident. कुछ ऐसा event और incident हो जाता है, right? Which acts as a spark, as an ignition, right? See conditions ripe हैं society में, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन है, स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस है, सोशल फर्मेंट है, जनरलाइज्ड बिलीफ भी है लोगों में। लेकिन जब तक वो इवेंट नहीं होगा, वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं होगा, वो इंसिडेंट नहीं होगा जो इसको लाइट अप कर सके। सी ये फ्यूल है, दिस इज फ्यूल विच इज वेरी कंड्यूसिव, लेकिन आपको कुछ स्पार्क चाहिए, कुछ इग्निशन चाहिए, कुछ ऐसा इवेंट हो करे, ऐसा इवेंट हो जिससे क्या है, दिस बिलीफ विल टर्न इनटू एक्शन, राइट? तो spark ignition which transforms this generalized belief into collective action. और यहां से this marks the onset or start of social movement. यहां से जो social movement in action आपको नजर आएगी. Let me explain it with the help of 4 examples. Custodial killing of Mahsa Amini, right? आपने ईरान में विटनेस किया. The women of the conditions of women in Iran, right? वी नो कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, ऑपरेशन कैसा होता है, उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, चॉइस नहीं है, लिबर्टीज नहीं है, एंड वुमेन डे इन एंड डे आउट सफर फ्रॉम दीज कंडीशंस. वुमेन आर ऑल्सो अवेयर, वेरियस वर्क्स हैव बीन रिटन ऑन इट, राइट? दे आर ऑल्सो अवेयर, दे हैव रेड इट अक्रॉस इंटरनेट एज वेल, सो इट इज वेरी मच क्लियर. लेकिन वर्कर्स, वुमेन का प्रोटेस्ट नहीं आपको देखने को मिला, राइट? अभी तक. लेकिन जैसे ही ये इवेंट हुआ, कस्टोडियल किलिंग ऑफ महसा अमीनी बाय द इरानियन मोरालिटी पुलिस, शी वॉज किल्ड इन कस्टडी. नाउ इट एक्टेड एज ए स्पार्क और इग्निशन. तो जो बिलीफ था, जनरलाइज्ड बिलीफ था, राइट, जो फ्यूल था, उसको इसने चिंगारी की तरह आग दी. And right, it fueled all the women, the activists, the young people, and they came onto the streets, right, and thereby they started this movement in favor of human rights, in favor of women's rights, right? Rosa Parks, another example, right? Who is Rosa Parks? See, Rosa Parks was a black woman, right? 1950s or 60s, 1950s की डिकेड की बात है. उस टाइम पे blacks were not extended equal rights. There was widespread discrimination and it was very overt, direct discrimination in the American society. ठीक है. Now Rosa Parks क्या है? She refused, right? She was traveling in a bus and she refused to give her seat to a white man. उस टाइम पे तो privilege होती थी कि white लोग ही बैठ सकते हैं. And the blacks have to abide by what the dominant race or whites say. So she refused to give up her seat. Now this acted as a spark, right? ये सारी चीजें थी वहां पे. Now this acted as a spark which ignited or initiated the civil rights movement, headed by multiple leaders, right? Du Bois और उसके साथ साथ Martin Luther King Jr., right? It initiated civil rights movement in case of America. मैं आपको और एग्जांपल देता हूं. सी रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके पीछे, राइट, जो ट्रिगर इवेंट था, राइट, जो ट्रिगर इंसिडेंट था, वो क्या था? द ट्रिगर इवेंट और ट्रिगर इंसिडेंट बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 which acted as a spark
was what? Introduction of greased cartridges, right? बंदूक में कार्ट्रिज डाली जाती थी तो उसको बाहर से उसका कवर रिमूव करके that has to be removed by teeth. Now rumors say कि this cover is made of cow and pig, right? This is pig, cow and pig fat. These were the rumors which were floating around. Now this acted as a spark, right, as an ignition for the Sepoy Mutiny, and thereby it led to the revolt of 1857, the first war of independence, right? ऐसी ही ब्लैक लाइव्स मैटर आपने मूवमेंट देखी होगी, राइट, विच फाइट अगेंस्ट सटल और covert, right? It is not overt anymore, it is not direct anymore in the American society, but it has become underground. It is very subtle in nature, right? It is very you can say covert in nature, it is hidden in nature, right? Societal and institutional racism को fight करने के लिए, discrimination और inequality को fight करने के लिए Black Lives Matter movement चली. लेकिन उसके पीछे trigger event क्या था? See, in 2012, right, there was a young person, right, a teenager, Trevor Martin, राइट. तो वहां पे क्या है, नेबरहुड वॉलंटियर्स वॉच थे, उनका एक वाइट पर्सन था, जॉर्ज जिमरमैन, राइट. नहीं तो रात को इन्होंने इस पे कुछ सस्पिशन किया होगा, दिस पर्सन इज एंगेज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज और व्हाटएवर, एंड ही किल्ड दैट पर्सन, राइट, बट ही वाज रॉन्गली किल्ड. नाउ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ अमेरिका acquitted George Zimmerman. So this acted as a spark in which people started speaking out against the institutional racism. The racism which is institutionalized in the American society by police or by judiciary, right? और अब देखो, right, ये कहीं ना कहीं मूवमेंट थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, लेकिन जैसे ही जॉर्ज फ्लॉयड वाला इंसिडेंट हुआ 2020 में, right, in which that policeman, the white policeman was sitting or he was knelting on the back of this black person, right, George Floyd, and he died. So these act as a spark, ignition, right? जो अंडरलाइन फ्यूल है उसको स्पार्क और इग्निशन देते हैं, एंड दैट मार्क्स द स्टार्ट और ऑनसेट ऑफ सोशल मूवमेंट, राइट. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नील्स मेल्जरसन बोलते हैं कि विदाउट अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर अ सोशल मूवमेंट might not be able to start for a long period of time. It might be for centuries or decades. So you need that precipitating factor, right? Fifth stage is mobilization of action, right? ये एक्चुअल जो आपको सोशल मूवमेंट दिखती है, राइट, दीज आर प्रीसीडिंग स्टेजेस, जो आपको दिखती है, जो आप सुनते हो न्यूज में, जो आप देखते हो मीडिया में, राइट, दिस इज दैट स्टेज. मोबिलाइजेशन फॉर एक्शन. हेयर पीपल आर मोबिलाइज्ड, आइडियोलॉजी इज पुट फॉरवर्ड, लीडरशिप आती है, और लीडरशिप क्या करती है? डायरेक्ट, सुपरवाइज, गाइड, इंस्ट्रक्ट और मोटिवेट्स द पार्टिसिपेंट्स, right, channelizes the movement and energies of the participants in a particular direction for a particular vision, right. ऐसी फिर ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट? मैन, मटीरियल, मनी एंड अदर रिसोर्सेज, राइट. हियर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर मेड, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर हेल्ड, पब्लिक स्पीचेस आर मेड, influential or respectable people and celebrities are invited, right, because this is going to these people have positive aspect in society, and this is going to legitimize the movement. When a respectable person starts supporting the movement, it is going to definitely will lead to more acceptance by the people, and it will increase the social base of the movement. Now let me give you an example, a very hypothetical as an example, right. For example, agar Bharat Ratna Sachin Tendulkar, right, he started participating in Shaheen Bagh or farm laws, that would have gained more, now that movement would have gained more credibility, would have been more accepted by the people, uska और wider base hota, right. Or a person like Kalam, right, if he was alive and if he would have joined Shaheen Bagh, तो उसको लेजिटिमेसी मिल जाती है, उसको एक पॉजिटिवली लोग देखने लग जाते हैं, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा और वाइडर सपोर्ट बेस हो जाता. सो दे आर ट्राइंग टू रोप इन इन्फ्लुएंशियल रिस्पेक्टेबल पीपल और सेलिब्रिटीज बिकॉज दे एंजॉय मास बेस, एंड देयर बाई देयर अपील विल लीड टू मोबिलाइजेशन मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल, राइट. ऐसी ही पब्लिक मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है, लीफलेट्स और पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, स्टेज इज सेट, हेडक्वार्टर्स ऑफ द मूवमेंट इज मेड, right, tents are erected, stages are set up,
एंड सोशल मीडिया इज एक्टिवेटेड, व्हाट्सएप के थ्रू आप मोबिलाइज करो, ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेजो, राइट? फेसबुक इज मोबिलाइज्ड, इंस्टा is mobilized, YouTube is mobilized, and thereby they spread or disseminate their ideas or their demands to as many people as possible, their cause to as many people as possible, thereby leading to mobilization more and more number of people, right? तो organization, man, material, right? लाउड स्पीकर सेट करना कैसे होगा? वेब कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, who will be the technicians? So it based on organization, leadership, राइट, आइडियोलॉजी, पीपल आर मोबिलाइज। तो मेन जो पार्ट होता है जो आप देखते हो, दिस इज मोबिलाइजेशन फॉर एक्शन। लेकिन इस स्टेज पे आने के लिए पहले ये 4 स्टेजेस होनी चाहिए। और जब मैं बात करता हूं स्टेजेस की, सी ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, कभी कभी ये ओवरलैप भी करते हैं, ज्यादातर टाइम्स दे आर ओवरलैप करते हैं। इन्होंने क्या कंसेप्चुअली स्टेजेस को अलग अलग किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर overlap or coalesce with each other, right? It is difficult to differentiate. He has logically, right, conceptually separated these and made this a kind of a you could say a flow chart where we will be moving from S1, S2, S3, S4, S5, S6 and so on, right? Last stage is failure of social control. अगर सरकार का फेलियर होता है, दैट इज सोशल कंट्रोल का फेलियर होता है, तो मूवमेंट क्या है? कंटिन्यू करेगी, राइट? If the social movement fails, if the social control fails, right, then the movement will continue, right? अगर ऐसा नहीं होता है, then response of state authorities पर डिपेंड करता है। social movements might die out, right? For example, social movement might die out if demands are met, तो कोई मतलब ही नहीं है सोशल मूवमेंट करने का, और ग्रीवेंसेस आर एड्रेस्ड और सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल, फार्मर्स प्रोटेस्ट, दे प्रोटेस्टेड फॉर दिस शुड बी अ मूवमेंट, राइट? दिस शुड नॉट बी अ प्रोटेस्ट, बट दिस इज हाउ द मीडिया wrote about it, right? Farms laws are withdrawn, so their demands are met, and that is why movement is withdrawn, right? या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टेट क्रशेस और ब्रूटली सप्रेसेस द सोशल मूवमेंट यूजिंग इट्स रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस मशीनरी, राइट? ऐसा ही तो हुआ था तियानमन स्क्वायर में, तियानमन स्क्वायर, राइट? एक रिवॉल्यूशन हुई चाइना में, वेर इन पीपल वांटेड फॉर डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, दिस वाज ब्रूटली सप्रेस्ड, राइट? ऐसे ही सोशल मूवमेंट माइट रन आउट ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज्म और सपोर्ट और मनी, ऐसा भी हो सकता है। सी, participants has finite will or energy. Participants, they have stopped doing their daily chores, they have stopped participating in work, right? Students have stopped going to schools or colleges, women have stopped doing their household work, right? ऐसे ही men have stopped going to work, but they need all this, their daily routine or these daily activities in order to sustain themselves, right? So even if you are really committed to the cause, but after a certain point of time, because social movements are sustained over a period of time, after certain moment of time, your enthusiasm or energy is going to run out, right? So run out of energy or enthusiasm or support, या support भी लोग withdraw कर लेते after some time, या फिर money, participants has finite will or energy। इसलिए क्या करते थे गांधी जी? fast unto death, आप पढ़ोगे कि I am fasting for you people, I am still participating in civil movement, in this national movement, right? Leaders has infinite wills, but participants have finite will, ये आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में। So these leaders, charismatic leaders, they stimulate, they motivate these people, right? That get back on your feet, right? Participate in movement with more enthusiasm, with more energy, right? We need you, we need this support base, and we have a just cause, so you should be participating in it, right? And through this resolve, now it strengthens the resolve of these participants. When Gandhi ji, the charismatic leader, is sitting on fast, right? It resolves. एक हो सकता है कि मूवमेंट कैसे डाइवर्ट हो जाती है? सोशल मूवमेंट इज को-ऑप्टेड बाय द पावर होल्डर्स। व्हाट इज को-ऑप्टेशन मीन्स, राइट? को-ऑप्टेशन इज अ प्रोसेस whereby power holders appropriate movements, leaders or participants or ideas in order to weaken the movement, right? इसमें क्या है? जिसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, या फिर पावर होल्डर्स क्या है?
राइट। वो क्या है, मूवमेंट के लीडर्स को क्या है, थ्रू वेरियस काइंड ऑफ हिडन बैक चैनल टॉक्स दे को ऑप्ट देम, राइट, दे इंक्लूड देम इन देयर ओन एजेंडा, राइट, एंड देयर बाय दे आस्क दिस लीडर्स टू स्टॉप द मूवमेंट। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्वदेशी मूवमेंट आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, राइट। हियर ब्रिटिशर्स को ऑप्टेड द मॉडरेट्स, राइट। मॉडरेट्स को क्या दिखाया गया, अ कैरेट ऑफ रिफॉर्म्स, हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, विल बी मूविंग मोर एंड अ स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स सेल्फ रूल, स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस स्वदेशी मूवमेंट, वी आर गिविंग यू रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, मॉरलेमेंटल रिफॉर्म्स हम लेके आएंगे। Moderates always wanted these reforms, but these were not earth-shattering or not completely satisfying the demands of the extremists, right? तो here क्या हुआ, इसी की वजह से आप देखोगे कि moderate extremist split हुआ और schism आया, right? तो moderates they opted out of movement, they were co-opted by the government. Extremists क्या थे, extremist ideology थी, now they were brutally suppressed by the government using this repressive state apparatus. So leaders might be co-opted. ऐसे आप देखो, imagine a hypothetical scenario in which the capitalist or a factory owner, right, जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं उनकी मूवमेंट चल रही है, उनके साथ बैक चैनल टॉक्स कर लेते हैं, आई विल गिव यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, राइट, एंड देयर बाय यू ट्राई टू क्रिएट डिवीजन विद इन द सोशल मूवमेंट, ट्राई टू प्रोपगेट काउंटर आइडियाज, एंड देयर बाय विल इन्फ्लुएंस द मूवमेंट एंड मेक श्योर इट विल prematurely die, right? So these are various strategies. So this is the last stage of social movement, either continue करेगी, either continue नहीं करेगी, right? But ultimately it is going to end, right? Desirable social change होगा या नहीं होगा, right? So now अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी। इस थियरी का मानना ये है कि effective mobilization of resources, effective organization and management of resources is very important for emergence and sustenance of a social movement. इस थियरी का मानना ये है कि पहले जो समझा जाता था बाकी थियरीज के थ्रू कि सोशल मूवमेंट्स आर और रिवोल्यूशंस क्या हैं, दे आर मेनली जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन सोशल मूवमेंट्स नाउ, राइट, कि दे आर मेनली एक्सप्रेसिव, it is based on raw emotions of men, right? These are purely spontaneous, ऐसे समझा जाता था साइकोलॉजिकली। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते, इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे सोशल मूवमेंट्स को क्या है, काइंड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड माना जाता था, राइट। और ये इनका मानना ये है कि देखो सोशल अनरेस्ट तो हमेशा ही रहता है सोसाइटी में किसी ना किसी चीज को लेके, राइट। व्हाट मैटर्स इज इफेक्टिव tapping into this social unrest and organizing it. Only then social movements will emerge, right? Social movements तो एक constant feature है, you will always find some sort of relative deprivation in all societies, some sort of social unrest or social ferment is always there. What matters is effective organization of or tapping into this social unrest, और उसके लिए आपको पॉसिबल, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप क्या है अफेक्टिवली मोबिलाइज कर पाते हो रिसोर्सेज को, अफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर पाते हो सोशल मूवमेंट को। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट विल मेनली रिमेन एन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस, इट विल लिमिटेड ओनली टू अ प्रोटेस्ट, राइट, इट विल बी वेरी लिमिटेड एंड वेरी शॉर्ट टर्म। अगर उसको सोशल मूवमेंट्स वो तभी होंगी, तभी वो सस्टेनेबल होगी लॉन्ग टर्म में, जब व्हेन दे आर इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड। सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी ये बोलती है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कि इट इज अ की फीचर फॉर द इमर्जेंस एज वेल एज सस्टेनेंस ऑफ दिस सोशल मूवमेंट्स। विदाउट दिस सोशल मूवमेंट्स आर नॉट पॉसिबल, राइट। ठीक है, तो इसका थियरी का क्या मानना है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, सोशल फर्मेंट, सोशल अनरेस्ट और रिलेटिव डेप्रिवेशन, दिस इज मेयरली नॉट इनफ इन इटसेल्फ टू ब्रिंग सोशल चेंज। ये क्या है, तभी अनफोल्ड होगा सोशल मूवमेंट में जब आप इफेक्टिवली मोबिलाइज कर पाओगे रिसोर्सेज को, तभी इसको टैप कर पाओगे स्ट्रक्चरल स्ट्रेन को, राइट, तभी पॉसिबल है। विदाउट इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जब हम रिसोर्सेज के बारे में सोचते हैं तो हमें खाली मटेरियल और मनी की बात आती है हमारे माइंड में, लेकिन ये थियरी
they are talking resources in general. They are talking about cultural resources, leadership, knowledge. These are also resources, right? Social networking, influence, contacts. These are also resources. Not just man, material, money, time and energy as well. तो आप इन सभी को इफेक्टिवली मोबिलाइज और ऑर्गेनाइज कर पाओगे, तभी आप क्या है वो जो है प्रोटेस्ट मूवमेंट में कन्वर्ट होगा, राइट? तो मूवमेंट के लिए एसेंशियल क्या है? इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो इसलिए इन्होंने मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी दी. विदाउट इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अ सोशल मूवमेंट माइट नॉट क्रिस्टलाइज इनटू एक्टिव एंड पोटेंट फोर्स, राइट? अब इससे पहले क्या माना जाता था कि सोशल मूवमेंट्स आर एक्सप्रेसिव. हमने टेलगुड पर्सन में पढ़ा था एक्सप्रेसिव वर्ड के बारे में, एक्सप्रेसिव एक्शन, इमोशन बेस्ड एक्शन, राइट? तो ये बोलते हैं सोशल मूवमेंट्स आर नॉट जस्ट एक्सप्रेसिव, जो पहले माना जाता था. रादर दीज आर नॉट, पहले क्या माना जाता था कि दीज मूवमेंट्स आर बेस्ड ऑन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस, आउटबर्स्ट ऑफ रिजेंटमेंट, आउटबर्स्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, राइट? और दीज आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, राइट? पहले ये माना जाता था. लेकिन वो बोलते ऐसा नहीं है. वो बोलते दीज मूवमेंट्स आर रादर सोशल मूवमेंट्स आर इंस्ट्रूमेंटल. ठीक है, अगर ऐसा होगा इट विल माइनली ओनली रिमेन अ प्रोटेस्ट. मूवमेंट में तभी हो पाएगा कन्वर्ज ये, या सोशल मूवमेंट तभी इमर्ज करेगी व्हेन यू विल इंश्योर इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओनली दैट इज गोइंग टू मेक द सोशल मूवमेंट इमर्ज एंड मेक इट लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल, राइट? तो सोशल मूवमेंट इन्वॉल्व्स, social movement is instrumental, social movement is methodic, social movement is effectively and properly organized, social movement involves rational actors. These actors have means and orientations and not just pure working on the basis of pure emotions or spontaneity. These are rational, they have means and orientations, they are using suitable means in order to attain their effective goals or end means and goals, right? So social movements are instrumental, that is it involves rational actors using suitable or effective means to achieve or attain their end goals. Social movements are methodic, properly or effectively organized. Therefore, a social movement's success, maturity, development, emergence, it depends on what? Effective organization, management and mobilization of resources. ठीक है? Social unrest, it says social unrest of some sort is always there. What matters is effectively tapping into it. So these social movements को क्या है? Unorganized नहीं, purely spontaneous नहीं, purely emotion based नहीं. इन्होंने क्या बोला? These are organized, these are rational, it involves rational actors, means and orientation, effective organization and mobilization of resources, right? तो किस टाइप के रिसोर्सेज होंगे, राइट? हम जब सोचते हैं रिसोर्सेज को तो बेसिकली हम सोचते हैं मटेरियल और मनी के बारे में. दीज आर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, पर ये क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, राइट? वन इज मटेरियल रिसोर्सेज, यू नीड अ बिल्डिंग और अ साइट और अ हेडक्वार्टर जहां से आपकी सोशल मूवमेंट क्या प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज की जाएगी, राइट? जहां पे उसके हेडक्वार्टर सेटअप होंगे. हेडक्वार्टर्स इन द सेंस उस प्लेस पे भी जहां पे भी टेंट वगैरह भी है, राइट? स्टेज सेटअप की गई है, वो भी हेडक्वार्टर माना जाएगा. इट इज नॉट हेडक्वार्टर इन द टिपिकल सेंस कि वो एक प्रॉपर कंक्रीट बिल्डिंग होनी चाहिए, राइट? विंडो पेन्स होनी चाहिए, वैसे वाला हेडक्वार्टर नहीं. मतलब जहां साइड से क्या है ये मूवमेंट का हेडक्वार्टर है या कैपिटल, जैसे कंट्री कैपिटल होती है वहां से रन किया जाता है, उसकी कैपिटल क्या है? बिल्डिंग साइट और हेडक्वार्टर, राइट? फूड, वाटर, टेंट चार्जेस, यहाँ पे भी पैसा लगेगा आपका. These are all material related things. Publicity material, you have to distribute leaflets, pamphlets, right? etc. multiple things. You need these material resources. Then you need to have loudspeakers, right? Wooden pandals, right? So material resources also involves money. अब मनी कैसे मोबिलाइज किया जाएगा, तो इसके बारे में बात करें. देयर कुड बी वेरियस वेज इन विच मनी कुड बी मोबिलाइज्ड, राइट? वन इज सेल्फ प्रोडक्शन. जब मूवमेंट सक्सेसफुल रहे, राइट, थोड़ी पॉपुलर हो जाए, तो मूवमेंट क्या करती है, लोग क्या करते हैं, पैसा मोबिलाइज करने के लिए जो मूवमेंट के साथ पॉपुलर सिंबल्स अटैच्ड होते हैं, राइट, जैसे उसकी इनकी मर्चेंडाइज बनाने लग जाते हैं और उसको सेल करने लग जाते हैं ओपन मार्केट में, राइट. फॉर एग्जांपल सेल्फ प्रोडक्शन, सेलिंग ऑफ मर्चेंडाइजेस, राइट, सेलिंग पॉपुलर सिंबल्स रिलेटेड टू मूवमेंट, राइट. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग this anti-corruption Anna Hazare movement, right, these people started selling this Main Bhi Anna cap, right, which was widely available in the markets of Delhi, right, and people used to buy these caps and used to participate in the movement, right. So that is one thing, right, self production.
Second is funding donors or to have support from outside, right? Funding from outside, rich businessmen or the people who are actually supporting your cause, ठीक है, राइट? यहाँ पे फार्मर्स मूवमेंट को खालिस्तानी बोल दिया गया था, that the funding is coming from Canada, right? Even बोला गया था, but there are not concrete details shared by these people, right? These were mere allegations, and if they want to have some sort of statement, they need to back it by certain proof, right? Only then people are going to believe in it. Otherwise, you're just believing in mere rumors or allegations, right? Contributions by followers or participants of movements, right? Contribution हो सकता है by followers and participants of movements, right? वो भी contribute कर सकते हैं. Followers जो support करते हैं, काफ़ी लोग support करते हैं, they will be giving donations and charity for the support of this movement, right? ऐसी human resources, effective organization का मतलब है कि this is a task, a movement is a task. You need effective organization of its resources, right? You need to divide this complex task, right? It involves a large number of people. You need to divide this complex task, and you need to you need to engage in some sort of division of labor, right? Division of work, or allocating certain activities to the people involved in this movement so as to work in an organized manner, constituting an organization, mobilization of man, material and money, right? तो ह्यूमन रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा. डिवीजन ऑफ लेबर, वर्क एक्टिविटीज टू मेंबर्स एसोसिएटेड विद द मूवमेंट. फिर होता है कल्चरल रिसोर्सेज. जब मैंने आपको पियर बोर्दियो के बारे में पढ़ा था, तो एंड वाज टॉकिंग अबाउट कल्चरल कैपिटल. कल्चरल कैपिटल वो कैपिटल है विच इज रिलेटेड टू स्किल्स, विच इज रिलेटेड टू पोजेशन ऑफ नॉलेज, राइट? अगर आपके पास कल्चरल कैपिटल है तो आप इकोनॉमिक कैपिटल भी कमा सकते हो, राइट? दिस इज व्हाट a new sort of entrepreneurs are emerging in the contemporary India, right? Where teachers are becoming entrepreneurs, right? So that is what you have cultural capital. You possess skills, knowledge and abilities, and on the basis of that you are earning money. तो आपके पास इकोनॉमिक कैपिटल भी आएगी, ठीक है? तो कल्चरल कैपिटल क्या है? कल्चरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, राइट? दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ नॉलेजेबल एंड स्किल्ड पीपल. यू नीड टू हैव knowledgeable and skilled people attached to the movement, right? For example, you need to have charismatic leadership. आपके पास charismatic leadership होगी, right? For example, people who have great oratory skills. This is very important, right? This is based on your knowledge and skills, great oratory skills. And on the basis of your great oratory skills, you'll be able to capture the imagination of the public, right? Thereby, you'll be able to influence more and more people to get attached with your movement, to support your movement, right? To support your cause. They will be giving some funding money also. So thereby, not just funding, but they will supporting the ideology of the movement, right? The ideas of the movement, its cause. So great oratory skills captures the imagination of the public, right? Plus cultural knowledge also means that these people, right, also have good contacts, right, on the basis of their skills, right, an influential social network, right? For example, to liaison with the media, you need media on your, you can say, on your side to present a positive image, right? ठीक है? तो लीडरशिप होनी चाहिए, अफेक्टिव लीडरशिप. टेक्निकल स्किल्स वाले लोग होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रियली वॉन्ट योर मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, you need to reach out a large number of people, and in the contemporary times it is possible to reach out as many people as possible through the tool or instrument of social media, right? Dissemination of information, your cause, your ideology to a large number of people is just possible at using one single click, right? Using Facebook, using WhatsApp, using Skype, using YouTube, using Instagram, you will be able to reach out a large number of people, and thereby to mobilize people, right? To operate social media, web conferencing करनी है आपको, या लाउड स्पीकर्स properly arrange करना है, you need these technical skills. So you need to have some sort of cultural resources, and cultural resources basically means यहाँ पे knowledge and skills वाली बात आ जाती है, right? You need these knowledgeable skills, leadership, oratory skills, राइट? कॉन्टैक्ट्स, सोशल नेटवर्किंग, वो सोशल कैपिटल होती है, लेकिन उसको हम कल्चरल रिसोर्सेज में ही डालेंगे, राइट? बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सोशल स्किल. यू हैव लार्ज नंबर ऑफ सोशल एंड इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स, राइट?
लास्ट इज मॉरल रिसोर्सेज, राइट। मॉरल रिसोर्सेज मतलब कि जो मूवमेंट अपना कॉज बता रही है, राइट, नेचर ऑफ प्रॉब्लम बता रही है, उनकी सॉल्यूशंस बता रही है, अपनी आइडियोलॉजी बता रही है, राइट, दिस शुड अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल, राइट। तो मॉरल रिसोर्सेज मतलब उस मूवमेंट के पास मॉरल रिसोर्सेज होने चाहिए विच आर गोइंग टू लेजिटिमाइज एंड जस्टिफाई दिस मूवमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट। और मॉरल रिसोर्सेज में देखिए क्या क्या हो सकता है। मॉरल रिसोर्सेज का यूज करके यू विल बी ट्राई टू लेजिटिमाइज सोशल मूवमेंट और जस्टिफाई योर सोशल मूवमेंट और जस्टिफाई योर सोशल कॉज, राइट। एंड इफ योर मॉरल रिसोर्सेज योर मूवमेंट बिकम्स एक्सेप्टेड, right, it creates a positive image of movement in minds and hearts of the people. Now see, during farmers protest, right, what certain sections were trying to do is they were trying to attack this movement, they were trying to undermine the legitimacy of this movement, right, they were trying to create a negative image of the movement. This is supported by Khalistani terrorists, funding is coming from foreign sources, right, these are anti-national peoples, right. So there was a moral fight that was going on the part of the movement, right. They were trying to justify using this moral resources that they are having a good cause, right, and this is the cause that they are fighting for, we are doing it for the welfare or well-being of all the farmers, right. See, तो मॉरल रिसोर्सेज को हम देखते हैं कि कैसे हो सकता है टू लेजिटिमाइज सोशल मूवमेंट, राइट, इट बिकम्स एक्सेप्टेड एंड क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ मूवमेंट इन माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल, दिस इज व्हाट मॉरल रिसोर्सेज डू, राइट। फॉर एग्जांपल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाईली रिस्पेक्टेड एंड क्रेडिबल पीपल, इफ सम हाईली रिस्पेक्टेड, राइट, these people have great image in the eyes and imagination of the public, right, उनकी credibility बहुत ज़्यादा है, right, when these people, if you are able to secure their participation in the movement, if you are able to secure their justification for the movement and its cause, now this is going to create, right, because these people have mass followings, right, isme for example mass following, and that is why it is going to create positive image in the eyes of the public. So it will lead what moral resources will do, moral resources anti corruption movement का क्या था, fighting corruption, right, और इसमें क्या है, राइट, इट इन्वॉल्व्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाईली रिस्पेक्टेड और क्रेडिबल पीपल है, तो मतलब उनके मॉरल रिसोर्सेज डॉक्यूमेंट हो गए। इट प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी, पॉजिटिव इमेज, एक्सेप्टेंस एंड इवन पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अन्ना हजारे, राइट, ही वॉज नॉट जस्ट कल्चरल रिसोर्स, रादर ही वॉज यूज्ड एज अ मॉरल रिसोर्स बाय दिस एंटी करप्शन मूवमेंट, राइट। व्हेन दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, right, and various people participated on of the likes of Arvind Kejriwal, Kiran Bedi, right, Ramdev Baba, then it was very necessary for them to involve a Gandhian personality who has worked on the ground level, right, and thereby the very image of the Anna, right, it signified purity to people, right, his methodology of protest made him kind of, there was an equivalence which was drawn between him and Gandhi, right, he was seen as a modern Gandhi using his modern techniques in order to fight corruption, right, these are the moral resources, ठीक है। so इसलिए सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है ताकि मास एक्सेप्टेंस हो, right, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कुछ देर पहले कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो इमेजिन करो जिसमें भारत रत्न जैसे कलाम सर, राइट, सचिन रमेश तेंदुलकर, राइट, दीज पीपल जॉइंड द शाहीन बाग प्रोटेस्ट और दे स्टार्टेड सपोर्टिंग फार्मर्स लॉज, उनकी क्या पॉजिटिव इमेज और बढ़ जाती, लेजिटिमेसी बढ़ जाती, तो दीज वुड हैव एक्टेड एज अ मॉरल रिसोर्स, राइट। ऐसी रतन टाटा, गांधी जी, अन्ना हजारे, सो दिस इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी। एक है मास सोसाइटी थियरी, राइट, दिस इज समवट ऑल्सो अ पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव से भी इसको लिंक कर सकते हो कि व्हाट इज द कॉज ऑफ सोशल मूवमेंट, व्हाई पीपल पार्टिसिपेट इन सोशल मूवमेंट। सी, इस थियरी का कहना यह है कि मैन इन मॉडर्न सोसाइटीज, राइट, सोसाइटीज ऑफ हाई मॉडर्निटी,
is guided by values of individualism, right? Modern societies are based on individualism. Pattern variable B, Talcott Parsons, right? Wherein people are pursuing their what? Self-interest, right? And due to this, right, we can see in the modern times or societies of high modernity, it is characterized by what? Decrease of mechanical solidarity, decrease in collective conscience, decrease in community sentiments, right? And that is why man is feeling or becoming highly lonely in these modern societies, right? Plus you could see रिलेशनशिप्स जो होते हैं हमारे सोशल बॉन्ड्स जो होते हैं, हमारी जो सोशल टाइज होती हैं, राइट, इन दिस हाईली मॉडर्न सोसाइटीज और इन दिस रिलेशनशिप्स इन मार्केट सोसाइटीज, दे आर हाईली यूटिलिटेरियनिज्म, दे आर हाईली यूटिलिटेरियन. दिस रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन व्हाट? राइट, क्विड प्रो को, म्यूचुअल बेनिफिट. आप मेरे लिए क्या फायदेमंद कर रहे हो, राइट, तभी मैं आपके साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा. Man being rational utility maximizer who is trying to maximize his utility in any kind of situation, in any kind of relationship, right? So these are conditional relationships. और ये क्या है? बड़ी formal और contractual relationships है, right? Rational और impersonal relationships हैं, हमने ये पढ़ चुके हैं, right? प्लस अगर आप देखो एंथनी गिडन्स भी क्या बोलते हैं, हाई मॉडर्निटी के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं राइज ऑफ वर्चुअल रिलेशनशिप्स, राइट, विच लैक्स इंटीमेसी, इनफॉर्मलनेस. तो मैन इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट? तो मेन क्रक्स क्या है इसका? मैन इज सफरिंग फ्रॉम सोशल आइसोलेशन. तो अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन क्या है? ड्यू टू दिस, सिंस मैन इज सफरिंग फ्रॉम सोशल आइसोलेशन, मैन इज इंक्रीजिंगली पार्टिसिपेटिंग इन सोशल मूवमेंट्स. व्हाई? बिकॉज सोशल मूवमेंट्स की क्या है? सोशल अटैचमेंट्स हो सकती हैं, सोशल नेटवर्क्स डेवलप होते हैं, सोशल बॉन्ड्स होते हैं, सोशल टाइज डेवलप होती हैं, right? Plus this is not based on individualism, rather this is based on what? Pursuing collective goals, focusing on collective interest, to believe in something which is greater than your own individual cause or own individual interest. And this is what man always wants, right? This is based on what? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे man क्या है? Develop personal, informal and emotive bonds. As these are based on what? Emotions. Movements are based on emotions, underlying sentiments, common consciousness, right? So through participation in social movement, these represents an escape from this life, right, of high modernity. तो यहाँ पे क्या है? It gives one meaning, identity. मैं भी अन्ना, right? कैप आती थी जब ये करप्शन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. It gives a feeling of belongingness, not meaninglessness, right? तो यहाँ पे लोग क्या पर्सनल और इनफॉर्मल और इमोटिव बॉन्ड्स भी डेवलप करते हैं, बिकॉज दिस सोशल मूवमेंट्स आर बेस्ड ऑन व्हाट? इमोशंस. सो दिस इज मास सोसाइटी थ्योरी. इसका क्रिटिसिज्म क्या है? दिस इज ओनली लिमिटेड टू डेवलप्ड और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. व्हाट अबाउट डेवलपिंग सोसाइटीज? व्हाट अबाउट पीजेंट्स मूवमेंट? आर पीजेंट्स लोनली? व्हाट अबाउट फार्मर्स मूवमेंट्स? व्हाट अबाउट ट्राइबल मूवमेंट्स? व्हाट अबाउट भूदान मूवमेंट? व्हाट अबाउट नक्सलाइट मूवमेंट्स? सो दिस हैज अ वेरी लिमिटेड स्कोप, राइट? प्लस इसका क्रिटिसिज्म ये है कि इमोशंस, यू कैन नॉट साइडलाइन इमोशंस. इमोशंस ही कोर बनाता है सोशल मूवमेंट का, राइट? और ये बोला जाता है कि राइट, इसका क्रिटिक डाल सकते हो कि इमोशंस राइट आर इंटीग्रल to any social movements, right? You cannot underemphasize the role of emotions. In fact, social movements are based on what? Emotions, right? Plus, if you see, not just this, some of the movements, right, and some or even most of the movements, this is what the critics say, they tasted success only during initial stages marked by high emotions, high unrest
and high spontaneity. When there was spontaneity, as soon as movements become organized, they lose out their steam, and emotions. This is the critique, right? एक theory है relative deprivation already मैं आपको बता चुका हूँ, right? कि man is feeling relatively deprived in comparison with others, right? Or in comparison to some ideal state, right? And this feeling of relative deprivation continuously builds and develops. Ultimately man protest, and ultimately that leads to social movement, right? और हमने relative deprivation जब पढ़ा था, I was talking about Martin, I also linked it to revolutions, right? French Revolution, cause of relative deprivation. बुर्जवा क्या चाहते थे, उनका स्टेटस क्या था? They were one of the most richest people, right? Merchants and traders, right? They were even lending to the state भी और किंग भी और मोनार्क भी उनका कर्जदार था, बट उनका स्टेटस उनकी क्लास के साथ मैच नहीं होता था. they were categorized in the rank of third state or rank of commoners, right? और वहाँ पे इसकी वजह से क्या है, clergy और nobility first or the second state. So this created a feeling of disenchantment in them, a feeling of relative deprivation, and they wanted this status to change, their social order to change, and that is why revolution started. There are multiple causes for French Revolution. One of the causes is this, right? ऐसे ही मैंने आपको लिंक किया था, Indian middle class intelligentsia, a feeling of relative deprivation. Yes, their expectation did not match with their contemporary status. They were highly educated, Western education, right? They studied about civil liberties, they studied about French Revolution, they studied about Western democracies, but same was not extended to them. They were only given a subordinate status in Indian government services also, right? So they wanted self-rule, right? So that is relative deprivation. So now let us look at the last theory of social movement. Herbert Blumer will be talking about life cycle of movement, right? Movement की क्या life cycle होती है? We have already studied this. Our concepts are already clear, right? So it will be very easy for you to understand this, right? So I'll be going through it quickly. First, वो बोलते हैं life cycle में first what will come? Social ferment. There should be some sort of social unrest, structural strain, discontent, dissatisfaction, resentment, anger, frustration, a feeling of relative deprivation, right, with some aspect of society. लेकिन ये जो स्टेट होगी, ये जो स्टेज होगी, यहाँ पे this is relatively unorganized, right? This discontent is unorganized, this is unfocused, this is undirected, this is hidden, क्योंकि आपको नेचर पता ही नहीं है इस रिजेंटमेंट का नेचर, कॉज, रीजन क्या है. तो आप किसकी तरफ ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, किसकी तरफ इसको फोकस करोगे, किस गोल की तरफ फोकस करोगे, किसके अगेंस्ट डायरेक्ट करोगे आप, राइट? हिडन, नॉट क्लियरली विजिबल और आउटलाइंड, राइट? देयरफॉर इट लैक्स क्लैरिटी एंड इट इज बेस्ड, यहाँ पे एम्बिग्यूटी होती है, राइट? उसके बाद सोशल फर्मेंट के बाद पॉपुलर एक्साइटमेंट स्टेज, राइट? यहाँ पे नेचर, रीजन, सोर्सेज, causes of hidden underlying unrest and anger are more clearly outlined, they are more clearly understood, right? Social unrest यहाँ पे क्या होता है, it becomes focused, channelized, directed, right? अगर आपको नेचर पता चल गया उसका, right, it becomes directed. तो you will able to know against whom it should be directed, against what it should be directed, what could be the solutions. यहाँ पे आप लिख सकते हो solutions and remedies are also proposed here. तो ये काम किसका होता है, बुद्धिजीवी लोगों का, राइट? इंटेलेक्चुअल्स का, फिलोसोफर्स का. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. दादा भाई नावरोजी जब आए इंडियन पॉलिटिकल सीन पे और जब मॉडरेट्स आए, उनका फर्स्ट टास्क क्या था? देयर फर्स्ट टास्क वाज टू अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल. एंड व्हाई डिड दे वांट टू अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल? बिकॉज अंटिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे सेड कि इट इज अ वाइट मैन्स बर्डन, राइट, फॉर अस टू डेवलप यू. You people are backward, superstitious, and your poverty is a reason of this superstitions, backwardness, right? Lack of proper mindset. You are a land of snake charmers, right? And we are a superior race. We are a superior civilization. We are an advanced country, and we are here to develop you. So you should be thankful to us. So they developed a sort of inferiority complex amongst the Indians.
right? They wanted to, that is why Indians wanted to what? Copy these behaviors, anticipatory socialization, and thereby people like Dadabhai Naoroji, various moderates, initially उनका काम ही क्या था, right? To deconstruct this. लोगों में रिजेंटमेंट थी, राइट? सोशली, इकोनॉमिकली, आप पॉलिटिकली हर देखो इंडिया वाज लैकिंग, राइट? हर तरीके से डेप्रिवेशन था, हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन था, लेकिन इट वाज अनऑर्गेनाइज्ड, नॉट प्रॉपर्ली आउटस्टूड और आउटलाइंड, राइट? अगेंस्ट होम दिस डिसकंटेंट शुड बी डायरेक्टेड. कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे फोकस और कैसे चैनलाइज किया जाए. Then, for example, Podlets came and they outlined the reasons, nature and cause of their exploitation, and that is how people became aware and conscious of their social ferment or social unrest. After that, it could be directed, right? So this is the state of popular excitement. So, जब Dadabhai Naoroji, when he talked about drain theory, he wrote a book, Poverty and Underdevelopment Under British Rule. It is the very British rule is the very reason for India's underdevelopment and poverty. It is not that Indians are not capable, right? ये सब बातें की, और कैसे ड्रेन हो रही है वेल्थ की फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, उसको उन्होंने हाईलाइट किया, राइट? उसके बाद सब्सिक्वेंटली लोग और भी आइडियोलॉजीज आई जिसने क्लियर किया और बोला कि ये जो आपका अंडरलाइंग रिजेंटमेंट इट शुड बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बुद्धिजीवी थे, यहाँ पे यू विल सी मूवमेंट इन एक्शन, यहाँ पे आंदोलनजीवी होंगे, राइट? Which has become a curse word nowadays. So effective mobilization and organization of resources होगा यहाँ पे, resources like money, material, men, time, energy, ideology will be provided, leadership will be provided. Leadership will do what? Direct, guide, supervise, instruct and motivate people. यहाँ पे public speeches will be made, press conferences will be held, social media will be used or employed, publicity material will be distributed, right? And agitations and demonstrations will be held, right? This is the state of formal organization, right? See, इसके बाद एक कुछ यूनिक चीज़ बात करते हैं हर्बर्ट ब्लूमर, जो बाकी जगह नहीं है. हर्बर्ट ब्लूमर बोलते हैं अगर आपको मूवमेंट लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करनी है, राइट, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है इसको और कॉन्क्रीटाइज किया जाएगा और मूवमेंट को क्या हमें इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएंगे. यहाँ पे मूवमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब सर्टेन सॉर्ट ऑफ कंक्रीट ऑर्गेनाइजेशन विल इमर्ज, राइट? इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब सोसाइटी में इंस्टीट्यूशनलाइज होगी, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस मूवमेंट, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, टू सस्टेन मूवमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब एक फॉर्मल ब्यूरोक्रेसी डेवलप हो जाएगी, राइट? आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. पहले एनवायरमेंटल एक्टिविज्म हुआ, इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था, लॉट ऑफ पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एग्रेसिव डेवलपमेंट, राइट? दे वर एडवोकेटिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एडवोकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स राइट्स एज वेल. तो दीज पीपल केम टुगेदर, मूवमेंट हो रही थी. अल्टीमेटली दे फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज ग्रीन पीस. तो ग्रीन पीस क्या है? एनवायरमेंटल एक्टिविज्म. सो दिस इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द सोशल मूवमेंट. तो यहाँ पे क्या होगा, सोशल मूवमेंट क्या बन जाएगी? फॉर्मल, राइट? यहाँ पे जो लोग होंगे इन्वॉल्व होंगे, पेड स्टाफ, ब्यूरोक्रेसी, प्रॉपर लाइंस ऑफ हिरार्की होंगी, प्रॉपर लाइंस ऑफ अथॉरिटी होगी. यहाँ पे अथॉरिटी लिख लीजिए आप, राइट? हिरार्किकल होगी, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, राइट? प्लस दीज विल बी एबल टू चैनलाइज मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मैन, राइट, मटीरियल एंड मनी, एक्सपर्टीज होगी, एंड थ्रू दिस दे कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसीज, लॉज, राइट? पॉलिसीज और लॉज. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सी, इनिशियली जब ट्रांसजेंडर राइट्स होते ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, दे ऑल्सो स्टार्टेड लाइक दिस लूज कोएलिशन ऑफ पीपल engaged in some sort of organization in order to lead a movement. Ultimately it got concretized into an institution, right? तो various institutions आपको मिलेंगे, right? Various formal organizations मिलेंगी और advocating or fighting for what? Transgender rights. These are an outcome of this stage institutionalization, right? और ऐसे आप देखो political parties, एंटी हिंदी एजिटेशन स्टार्ट हुई थी इन तमिलनाडु, राइट? तो वहां पे अल्टीमेटली डेवलप्ड इनटू सॉर्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. वी विल कंटिन्यू दिस एजिटेशन, वी विल कंटिन्यू विद आवर डिमांड, वी विल कंटिन्यू टू असर्ट एंटी हिंदी आवर एस्पिरेशंस, राइट? वी विल कंटिन्यू टू असर्ट आवर मदर टंग्स, राइट? आवर नेटिव लैंग्वेजेस.
तो अल्टीमेटली ये पार्टी डेवलप्ड डीएमके, उसने यही बोला विल कंटिन्यूसली look to achieve these goals by snatching power, right? We will be institutionalizing this movement, right? ऐसी आम आदमी पार्टी का भी यही एम है, करप्शन मिटाना। इनिशियली स्टार्ट हुई थी अन्ना हजारे मूवमेंट, इट गॉट कंक्रेटाइज्ड और कल्मिनेटेड इन इंस्टीट्यूशन। आम आदमी पार्टी अभी भी उनका एम क्या है? टू एलिमिनेट करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी, राइट? सिमिलरली आईएनसी भी ऐसे ही बनी थी, राइट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। लेकिन इसका नेगेटिव क्या है? सी आप सस्टेन तो कर सकते हो, सी इसका इसलिए बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज, क्योंकि पीपल कैन नॉट फॉर लॉन्ग टाइम पार्टिसिपेट इन अ मूवमेंट, their energy is going to decline, right? Their motivation is going to decline. They have a finite will, so you need some sort of formal institutions and organization, right? A paid staff, proper division of work, proper lines of authority, hierarchy, so as to carry out this movement further. Lastly, movement ultimately also क्या है, dies out, और end stage में क्या है, अगर आपकी grievances meet होंगी, अब demands आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, आप अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लोगे, या फिर दिस माइट बी ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द स्टेट, राइट? रिप्रेसिव स्टेट अथॉरिटी, और या फिर उसकी एनर्जी और एंथुसियाज्म डिसिपेट किया जाएगा, इट माइट रन आउट ऑफ मनी एज वेल, राइट? और वेरियस अदर रिसोर्सेज। ऐसी इट कुड बी कोऑप्टेड बाय द पावर होल्डर्स, दोज इन अथॉरिटी और गवर्नमेंट, राइट? सी ब्लूमर, हमने टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट की बात की थी, रिवोल्यूशनरी, रिफॉर्मेटरी और रिएक्शनरी। एक क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट का ब्लूमर भी देते हैं। ही टॉक्स अबाउट टू काइंड ऑफ मूवमेंट्स, एक्टिव और एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट्स। एक्टिव सोशल मूवमेंट्स आर आउटवर्डली डायरेक्टेड, जो आप नॉर्मल सोचते हो सोशल मूवमेंट्स वही है। सो एक्टिव सोशल मूवमेंट व्हिच आर आउटवर्डली डायरेक्टेड, व्हिच एम्स टू ट्रांसफॉर्म द सोशल ऑर्डर, टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ सोशल चेंज इन सोसाइटी, व्हिच एम्स टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, राइट? ऐसी एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट, राइट, दीज आर इनवर्डली डायरेक्टेड। इनका एम क्या है? टू चेंज द पार्टिसिपेंट्स और टू चेंज द इनर सेल्फ्स ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड, राइट? दीज आर इनरली डायरेक्टेड। अब मैं आपका एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैंने बात की थी न्यू एज रिलीजियस मूवमेंट्स, जब मैं रिलीजन के बारे में बात कर रहा था, राइट? राधा कृष्णा कॉन्शियसनेस का इमरजेंस हो रहा था यूएसए में, विच वॉज बेसिकली एम्ड एट व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनर सेल्स, spiritual upliftment, right? Getting to know your spirit or soul or consciousness. ऐसे ही self help movements, for example alcoholic anonymous, right? This is a kind of transformation of inner self, right? ऐसी गांधी जी ने हरिजन मूवमेंट लॉन्च की थी, which focused on what? Purity of lifestyle of the lower caste, right? And thereby he advocated for this lower caste, right, to form a more pure lifestyle, right? For example, giving up eating of beef, giving up meat eating, या giving up liquor, right? लेकिन most social movements ब्लूमर बोलते हैं are both expressive and active, both expressive and active, well, because participants themselves undergo a change of self during the movement, right? You launched an active social movement to transform the society, you got deeply involved in that movement. Initially आप participate कर रहे थे just for the sake of participation, you wanted to have some sort of new experiences, you started participating in this movement, and ultimately throughout the course of movement you got more and more attached to the movement, right? You started believing more and more in its cause, right? And thereby you transformed yourself as well. तो जो movement में लोग participate करते हैं, they also undergo transformation, right? ठीक है, they might become better citizens, right? Or they might become rebels as well. It depends on the nature of the social movement, right? For example, Naxalite movement or Bhudan movement for that matter. ठीक है. See, now we will study about revolutions. What is a revolution, right? इसमें हम एक मेजर स्कॉलर हैं, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थैडा स्कॉकपल, राइट? इनके व्यूज को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो थैडा स्कॉकपॉल क्या बोलती हैं, राइट? वो बोलती हैं कि रिवॉल्यूशंस हम देख सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। जब हम टिपिफाई कर रहे थे सोशल मूवमेंट्स को, तो वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ सोशल मूवमेंट वाज रिवॉल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स। सो शी सेज it is one of the types or forms of social movement. It is a form of what? It is a form of collective action, right? And it seeks
टोटल एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है उसको हमको कंप्लीटली चेंज करना है, कंप्लीटली ऑल्टर करना है, राइट। वी हैव टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इट, वी हैव टू ओवरथ्रो दिस सोशल ऑर्डर, राइट, एंड वी हैव टू ले द फाउंडेशंस ऑफ अ न्यू और ऑल्टरनेटिव सोशल ऑर्डर जिसकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी, डिफरेंट नॉर्म्स होंगे, राइट। So it seeks a total and complete transformation of existing society, social, economic, political changes, right? And overthrow or seek to replace it by our proposed, they imagine, right, a new social order, a new future, right, driven by new sort of institutions, new values, new norms, right, imposes and proposes a new social order driven by new and often contrasting values and norms. Now these values and norms are contrasting, they are completely opposite or different in terms of previous social order. That is why they are seeking a total and complete change, completely replace करना चाहते हैं, right? तो जब मार्क्स बोलेंगे कि कैपिटलिज्म वाज ड्रिवन बाय व्हाट, इनइक्वालिटी, राइट, तो हम क्या है, ऑल्टरनेट वैल्यू, वी विल बी फोकसिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, वी विल वैल्यू इक्वालिटी इन द कम्युनिस्ट यूटोपिया, अ न्यू सोशल ऑर्डर। तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सभी चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, राइट। अगर जैसे हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आई तो सोशल एस्पेक्ट भी चेंज करने की कोशिश की, राइट, हियरार्की से वी मूव टुवर्ड्स इक्वालिटी, राइट, फ्रॉम एस्टेट सिस्टम्स इट लेड टू डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, राइट, राइट्स ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इक्वालिटी, इक्वालिटी, राइट, अ न्यू सोशल ऑर्डर, different way of categorizing different social groups, right, not on the basis of some primordial criteria of by birth, which is determined by birth, right, aristocracy, nobility or clergy, but through, we can say, we are moving from ascribed to achieved status, right, so different values, ठीक है। Then economic also, feudalism replaced by capitalism, right, feudal era, old feudal era को will be replacing by modern capital era, right. Then monarchy, primarily तो ये था political system को change करना, monarchy, right, monarchy और old feudal order को overthrow करके new progressive order लेके आना, republic state बनाना wherein head of the state is elected by the people, right. तो ascribed status से we are moving towards achieved status. So a new social order is must, वो उसका इमेजिनेशन मस्ट होता है। अगर रिवॉल्यूशन क्या है, राइट, इसमें ये जरूर कंसेप्चुअलाइजेशन है तो न्यू सोशल ऑर्डर का, इमेजिन्ड सोशल ऑर्डर का। देयरफॉर अ मेयर म्यूटिनी, स्नैचिंग अवे ऑफ पावर, मिलिट्री कू और आउटब्रेक ऑफ वायलेंस डज नॉट कंस्टिट्यूट अ रेवोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर क्या है, कुछ ऑल्टरनेटिव सोशल ऑर्डर का कोई व्यूज नहीं देते हैं। इसलिए कभी कभी ये बोलते हैं कि जो फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस थी, रिवोल्ट ऑफ 1857 था, उसको हम रिवोल्यूशन नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इट डिड नॉट प्रपोज अ न्यू सोशल ऑर्डर, राइट। इट्स ओनली एम वॉज टू ओवरथ्रो और स्नैच अवे पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, बट इट डिड नॉट लेड फाउंडेशंस फॉर फ्यूचर सोशल ऑर्डर। सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, राइट, सो इसलिए उसको रेवोल्यूशन नहीं बोल सकते, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ रेवोल्यूशन, अ मेयर आउटब्रेक, अ मेयर आउटब्रेक ऑफ वायलेंस, अ मेयर म्यूटिनी, राइट। तो यहां पे क्या होना चाहिए आपका, रिवोल्यूशन इज डेफिनेटली गाइडेड बाय आइडियोलॉजी, विजन, ड्रीम और डेफिनेशन ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर विच इज गिवन बाय आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट यूटोपिया के बारे में बात करते हैं, राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिलोसफर्स आए, इंटेलेक्चुअल्स आए, दे इमेजिन्ड अ न्यू स्टेट, right, separation of powers, Montesquieu, freedom of speech, Voltaire, these people were talking about it. John Locke, he talks about constitutional form of monarchy, right, so they were talking about natural rights and fundamental rights of men, ठीक है। so revolutions, right, अब इसको सी, ये बेसिकली 10 मार्कर ही आएगा, तो आपके पास अराउंड 7-8 पॉइंट्स होने चाहिए। सेकेंड इज रिवोल्यूशंस आर जनरली वायलेंट एंड ब्लडी, right, revolutions involves, generally it is seen by the social researchers who have researched about revolutions, right, various historical revolutions, they came to the conclusion that mostly or generally, not always, revolutions क्या है, उनमें violence होता है, उसमें क्या है, bloodshed involved होता है, लेकिन उसका रीजन क्या है वो सोचने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका रीजन जानने के लिए
एक तो हम इसको मार्क्स से लिंक कर सकते हैं, राइट, ठीक है। मार्क्स क्या बोलेंगे कि रूलिंग और डोमिनेंट क्लास क्या है, वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहती है, राइट। करंट सोशल ऑर्डर को क्या है, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को क्या है, चलते रहने देना चाहती है, क्योंकि उसी में ही उनके इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द बुर्जुआ एंड द प्रोलेटेरियट, राइट, ठीक है। तो अब ये क्या है, डोमिनेंट स्टेट जो क्लास है और रूलिंग क्लास है, बुर्जुआ है, राइट, इट विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द स्टेटस को, राइट, क्योंकि उनके इंट्रेंस्ड इंटरेस्ट है, राइट। तो एज वी नो दैट पावर और पॉलिटिक्स, राइट, इट इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स और स्टेट रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल पावर ऑफ द बुर्जुआ, बिकॉज सुपरस्ट्रक्चर शेप्स द इंफ्रास्ट्रक्चर शेप्स और डिटरमाइंस द सुपरस्ट्रक्चर, राइट। तो स्टेट इज गोइंग टू डू lot of it is going to do its utmost so as to maintain the social order, right। तो अगर इसको सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी, स्टेट इज गोइंग टू यूज इट्स व्हाट, स्टेट मशीनरी, रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस इन ऑर्डर टू कर्ब दिस मैनेस ऑफ रेवोल्यूशन, राइट। तो इसलिए जनरली क्या है, दो ऑपोजिट कैंप्स जब भिड़ते हैं, राइट, व्हेन बैटल लाइंस आर ड्रॉन इट जनरली लीड्स टू व्हाट, ब्लड एंड वायलेंस। दिस इज व्हाट मार्क्स वाज टॉकिंग अबाउट। तो अगर आपको पावर स्नैच करनी है, इफ यू हैव टू स्नैच द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टू रेस्ट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द बुर्जुआ, यू हैव टू टेक अप आर्म्स, right? Generally it will be violent and bloody, and that is why he said all the workers of the world should unite, right? And thereby you will be establishing what, a dictatorship of the proletariat. अब मेनली हम इसको लिंक कर सकते हैं, मेन जो है दैट इज नील्स मेल्सर, राइट, बिकॉज सी नील्स मेल्सर क्या बोलते हैं, राइट, ऑल दिस इज अ कंटिन्यूएशन व्हाट थेडस कोपकोल इज टॉकिंग अबाउट। मैं बस लिंक कर रहा हूं, राइट। मेजर सभी आर्गुमेंट्स क्या है आप थेडस कोपकोल के अंदर ही रखेंगे। Now she is also talking about कि जो existing social order है, it does not continuously address and accommodate the structural strain. Structural strain को address और accommodate नहीं करता। And ये देखा गया है कि ये जो social ferment है, discontent है, unrest है, is not allowed a proper release. It tends to accumulate. उसको रिलीज ही नहीं करने देते हैं, राइट। इट टेंड्स टू अक्यूमुलेट, दिस ग्रीवेंसेस इंक्रीज होती है, अनरेस्ट इंक्रीज होता है, लेकिन उसके लिए कोई आउटलेट नहीं है, राइट, उसके लिए कोई आउटलेट नहीं है। दिस इज बॉटल्ड अप एंड कंटिन्यूअसली अकोमोलेट्स, राइट। देयर इज नो सेफ्टी वॉल्व। प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है, राइट, जिससे प्रेशर कंटिन्यूअसली रिलीज होता रहता है, ऐसा नहीं है। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन बढ़ता रहता है, कंटिन्यूअसली अक्यूमुलेट करता रहता है। लेकिन इसका रीजन क्या है? सी, इसका रीजन ये है, दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। ये देखा गया है कि रेवोल्यूशंस बेसिकली हैपन इन मोनार्कीज और डिक्टेटरशिप्स, राइट, उसी में होता है, बिकॉज दिस डिक्टेटरशिप डज नॉट अलाउड व्हाट, डिसेंट एंड क्वेश्चनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर इज कंप्लीटली सप्रेस्ड, राइट, ठीक है, उसको कंप्लीटली सप्रेस कर दिया जाता है। तो कंटिन्यूअसली पीपल आर नॉट अलाउड टू असेंबल, टू प्रोटेस्ट। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन क्या अकोमोडेट नहीं होता है सोशल सिस्टम में, और इसी वजह से इट टेंड्स टू गेट accumulated, right, because it is not accommodated by the social system और the social structure। और इसी की वजह से क्या होता है, आप ये देखेंगे कि ये जो अनरेस्ट है, एंगर है, रिजेंटमेंट है, ये बढ़ता जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं है। सी, ब्रिटिशर्स ने यही सोचा था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि आईएनसी और कांग्रेस को इसलिए अलाउ, सी, इट वाज क्लियरली विजिबल दैट कांग्रेस अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लॉज इज गोइंग टू एंगेज इन सेडिशियस एक्टिविटीज, इट इज गोइंग टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। उसके बाद भी क्यों उन्होंने अलाउ करने दिया फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी? बिकॉज दे थिंक कि जो ग्रीवेंसेज है उनके लिए कुछ आउटलेट तो होना चाहिए, राइट, दैट इज वाई। So there is no safety wall for outlet of grievances and political dissatisfaction. So it continuously builds up, right? और सी, एक ऐसा टाइम आता है कि जनरली कुछ ना कुछ ऐसा टाइम आता है, सोशल, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाता है, जिससे ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है, क्योंकि जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस यूज कर रही थी, वो वीक हो जाती है। कभी ना कभी ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जरूर आएगा, राइट, जिसमें जो रूलर है, सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो जाएगी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, राइट। तो यहां से क्या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी अराइजेस और डेवलप्स। तो यहां पे जो कंडीशन इज राइट फॉर, ये जो होता है, ये जो डिस्कंटेंट बोटल्ड अप हो चुका था, अकोमुलेट हो गया था, राइट, इसकी वजह से क्या है, सोशल फर्मेंट क्या है, इट इज रिलीज्ड,
राइट, रिवोल्यूशन आ जाती है, इट इज रिलीज्ड जब इतना ज़्यादा सोशल फॉर्मेट अनरेस्ट किसी के अंदर बिल्ट अप है, तो आप देखिए इट विल बी आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस, right? It will be outburst of sentiments, it will be outburst of anger, it will be outburst of rage. So that is why these revolutions are generally violent, right? Because revolutions में क्या है, these are spontaneous, highly charged atmosphere रहता है, right? High energy रहती है, right? Lots of emotions और sentiments होते हैं और इसीलिए violence और bloodshed होता है. Let me give you a particular example. Let me try to explain it with the help of an psychology. See, anger is a very natural emotion. A person might be dissatisfied with various things. Now, if this person, due to multiple reasons, does not allow the vent out of this anger, right, suppress कर देगा अपने anger को, तो right, react नहीं करेगा, जब anger की जरूरत होगी, it is basically an outlet of your emotions, तो continuously bottle up होता रहेगा, बॉटल अप होता रहेगा, और ऐसा टाइम आएगा व्हेन दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू होल्ड दिस एंगर एनी मोर, और इसमें क्या है, देयर विल बी एन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, और जनरली ऐसा भी हो सकता है कि इट माइट लीड टू वायलेंस एंड ब्लड शेड, राइट, टेकिंग ऑफ समवन्स लाइफ. तो सिमिलरली कुछ ऐसा हो रहा है रिवोल्यूशंस में, ठीक है. ठीक है, तो मैंने आपको यहां पे बताया था कि विजन और ड्रीम्स ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर विच इज आइडियल, विच इज इमेजिन्ड, राइट. फॉर एग्जांपल यूटोपिया, मार्क्स बात करते हैं यूटोपिया की. यूटोपिया इमेजिन्ड और ड्रीम स्टेट ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी, नो एक्सप्लॉइटेशन, नो ऑपरेशन, a perfect state. Man is not a one dimensional man, man is a multi-dimensional man, no alienation of work, right? It's a beautiful state to live in, right? So he saw that seeds of ideology among the workers. उनको वो सपने दिखाए मार्क्स ने, और इसी वजह से जब मैं बात करता हूँ रिलेटिव डेप्रीवेशन की, जब तक ये न्यू सोशल ऑर्डर आप कंसेप्चुअलाइज नहीं करेंगे तो रिलेटिव डेप्रीवेशन कैसे होगा? हाउ वुड यू बी कंपेयरिंग योर एक्चुअल सिचुएशन, रियलिटी विद द इमेजिन्ड सिचुएशन, और उसी के आप कंटिन्यूसली क्या है, you will be alienated, right? Discontent is going to build up, right? See, there are multiple prerequisites for a revolution. एक तो mass discontent होना चाहिए, right? Weak central authority होनी चाहिए, एक political opportunity emerge होनी चाहिए, और इसे हमने ये भी देखा था, rarely revolutions rarely take place in democracies, right? जनरली जो चेंज होता है यहाँ पे आपको रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज मिलेगा और मिलिट्री डिक्टेटरशिप में, लेकिन यहाँ पे रिफॉर्मेटरी सोशल चेंज मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेस, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन और स्ट्रेस और सोशल फॉर्मेट इज कंटिन्यूसली अकोमोडेटेड, और वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है, रेगुलर मूवमेंट्स चलती रहती हैं विच आर फ्रीक्वेंट बट लेस एक्सप्लोसिव, राइट. वीक सेंट्रल अथॉरिटी, अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी, या फिर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा, राइट. डिसिडेंट इलीट्स होने चाहिए, राइट. There is certain section of political leaders, intelligentsia, middle class, or political leaders, they should be dissatisfied with the existing prevailing condition, right? तो जैसे ही opportunity आती है, political opportunity, they should seize this opportunity, right? तो ये भी होना चाहिए, because these dissident elites are also going to provide leadership and ideology, right? Further, economic crisis भी, right? This is also a precondition in at least some of the revolutions, right? फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स यही बोलते हैं कि कैपिटलिज्म विल सी द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, लेकिन उसके लिए एक इकोनॉमिक क्राइसिस आना चाहिए, राइट. वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और कैपिटल होना चाहिए फ्यूअर हैंड्स में, राइट. और वो विजिबल होनी चाहिए वो इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्लियरली. और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी तब आया था तो पीपल मास डिस्कंटेंट इसलिए था बिकॉज पीपल वर सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड स्टारवेशन, राइट. पीपल वर एब्सोल्युटली लिविंग इन मिजरी ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. People did not have money to even buy bread, right? तो फ्रेंच की जो क्वीन थी उनसे पूछा गया if they don't, तो she did not have any idea about what's going on in France, and she said अगर ब्रेड नहीं है तो उनको वाइन दे दो, right? So these people did not have any idea about the actual conditions of the masses, right? They were so immersed in themselves, right? तो वो भी है, एक apathy भी होनी चाहिए political leaders की, current political leaders की, right? Then there should be an ideology, a vision or dream of alternative social order. ये सारे प्री रिक्विजिट्स हैं in order to for revolution to take place, ठीक है.
तो जनरली स्टेजेस क्या होती है इसकी सी, पहले क्या, पावर इज स्नैच्ड बाय द डिसिडेंट एलिट्स, रेवोल्यूशन में पावर स्नैच कर लेंगे, फिर ये जो पावर इन्होंने स्नैच किया है ये अथॉरिटी का यूज करके दे विल बी ब्रिंगिंग इन सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. सो फर्स्ट दे विल बी स्नैचिंग पॉलिटिकल पावर, देन दे विल बी ब्रिंगिंग इन सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. और ऐसा हमेशा देख, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ऐसा हुआ, राइट. और यही सेम मार्क्स बोल रहे थे, पहले आप क्या डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट एस्टेब्लिश करो, राइट. प्रोलेटेरिएट लीडरशिप होगी, यही सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी. और जैसे ही सोशलिज्म होगा ये मिडिल स्टेट, और जैसे ही हम कम्युनिज्म की तरफ जाएंगे, आइडियल स्टेट की तरफ जाएंगे, तो वहां पे क्या है, आप ये देखोगे इक्वालिटी आ जाएगी, क्लासलेसनेस आ जाएगी. और अल्टीमेटली सिंस स्टेट इज द प्रोजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक पावर ऑफ द डोमिनेंट क्लास, राइट. यहाँ पे डोमिनेंट क्लास कौन सी होगी, मेजोरिटी, प्रोलेटेरिएट होगी, उन्हीं की पार्टी की लीडरशिप होगी. तो सिंस अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे इक्वालिटी आएगी क्लास वैनिश हो जाएगी, जब क्लासेस ही नहीं बचेंगी तो अल्टीमेटली सिंस स्टेट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पावर ऑफ दिस डोमिनेंट क्लास, कोई डोमिनेंट क्लास नहीं होगी, एब्सोल्यूट इक्वालिटी आएगी कम्युनिज्म में, तो स्टेट इज गोइंग टू विदर अवे, डाई आउट, राइट. लेकिन पावर इज स्नैच्ड बाय द डिसिडेंट एलिट्स, अथॉरिटी ब्रिंग इन सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. ऐसे ही प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट एस्टेब्लिश की गई, कम्युनिस्ट यूटोपिया बोला आएगा. तो लेनिन एक टर्म यूज करते हैं, रिवोल्यूशंस आर द फेस्टिवल्स ऑफ द ओप्रेस्ड पीपल, राइट. सी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी देखा हमने, राइट. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी थोड़ा सा यहाँ देखा, राइट. पर ये सारा आपको थियोडोस्कोपिकल में अंदर रखना, उनकी एक मेजर थ्योरी, उसमें वेरियस व्यू पॉइंट्स शी गिव्स, राइट. उसके अंदर आप लिख सकते हो, इनको मल्टीपल चीजों से लिंक कर सकते हो. अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में हम ये भी देखते हैं रिवोल्यूशंस का क्या आउटकम, क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव रिवोल्यूशन जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, राइट. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन हुआ था, राइट. रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज, प्रोग्रेसिवनेस लेके आए. इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, राइट. इट रिवोल्यूशन ऑल्सो मोस्टली एंड जनरली रिवोल्यूशन ये देखा गया है कि जब आप कम्युनिस्ट यूटोपिया की बात कर रहे थे या किसी भी यूटोपिया की, रिवोल्यूशन मतलब टोटल सोशल चेंज, तो यूटोपिया आपने लोगों में भर दिया है, राइट. लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी है, राइट. अब क्या है, ये जो कंडीशंस राइप होती है रिवोल्यूशन में, एक ऐसा लीडर निकल के आता है, मसीहा निकल के आते हैं, राइट. बिकॉज दिस कंडीशंस आर राइप फॉर इमर्जेंस ऑफ रिवोल्यूशंस. तो उनका नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होता है, राइट, कि दे थिंक दैट दे आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, और वो अकेले सारी अथॉरिटी अपने आप में रिपोज कर लेते हैं और कहते हैं इस अथॉरिटी का यूज करके आई विल बी ब्रिंगिंग टोटल सोशल इकोनॉमिक चेंज. पर मेरे खिलाफ कोई भी क्या है, जो मैं इस प्रोजेक्ट पे चलाऊं उसके खिलाफ कोई भी क्या है, बैरियर्स नहीं होनी चाहिए, रुकावटें नहीं होनी चाहिए, ऑपोजिट वॉइसेस नहीं होनी चाहिए, या फिर जो हमारा ड्रीम यूटोपिया उसका कोई ओपोजिशन नहीं होना चाहिए. तो उनको क्या है, ओपोनेंट्स को किलिंग करके एलिमिनेट कर दिया जाता है, राइट. डिक्टेटरशिप, स्टालिन जैसे, यूटोपिया इसलिए बोलते हैं यूटोपिया इज ए हाउस ऑफ टेरर ऑल्सो, राइट. सो दिस वाज अबाउट रेवोल्यूशंस. सी हमने देखा था कि मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स को वेरियस टाइप्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, और ये टाइप्स डिपेंड करेंगे आप किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, राइट. सो वन वे ऑफ क्लासिफाइंग सोशल मूवमेंट्स आर ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स, राइट. तो ये हम बात क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर न्यू सोशल मूवमेंट्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड सोशल मूवमेंट्स. सी स्कॉलर्स का मानना ये है कि पोस्ट 60s, राइट, 1960s के बाद आप देखोगे कि वेस्टर्न सोसाइटीज में यू विल सी अ लॉट ऑफ एफ्लुएंस, राइट. स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंप्रूव कर रहे थे, पॉवर्टी डिक्रीज कर रही थी, राइट. प्रोलेटेरियनाइजेशन की जगह क्या हो रहा था, मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हो रहा था, स्ट्रक्चरल मोबिलिटी थी, राइट. मटीरियलिज्म बढ़ रहा था, मटीरियल स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे थे, ठीक है. तो ये कंटेक्स्ट था. तो इस कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं कि पोस्ट 60s जो वेस्टर्न सोसाइटीज थी, दे हैव अंडरवेंट अ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. सो दीज हैव बिकम द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. These are post-industrial societies, and they have achieved an economic standard of living, a particular standard of living, right. Therefore, certain यहाँ पे पॉवर्टी डिक्रीज कर रही है, मटीरियलिज्म बढ़ गया, वेलफेयर स्टेट का राइज हुआ है, राइट. वेलफेयर स्टेट का राइज हुआ है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंप्रूव कर गए, एक्सपेंशन हो रहा है मिडिल क्लास का, और मल्टीपल क्लासेस इमर्ज हुई है, राइट. तो सर्टेन मटेरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ
right? Certain minimum standards of life, they are taken for granted, right? They are implicitly assumed by the people, right? कि we already reached a certain standards of living and this will be maintained, welfare state is there, capitalism is expanding, right? तो ये जो है हमारा सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. वी हैव मूव्ड इनटू पोस्ट इंडस्ट्रियल फेस, पोस्ट कैपिटलिस्ट फेस. तो इस फेस में क्या है, लोगों की कंसर्न्स चेंज हो गई, राइट? नई सोसाइटी, न्यूअर कंसर्न्स, और न्यूअर कंसर्न्स मतलब न्यूअर टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट्स. सो दिस इज व्हाई न्यू सोशल मूवमेंट्स एज अ टर्म was put forward by multiple scholars, right? Standards were implicitly assumed and taken for granted, right? Therefore, newer concerns, newer issues, it shaped collective action, and therefore it led to the rise of new social movements in the post-industrial societies. Old social movements किस में थी? Industrial societies में थी, right? ठीक है. Now industrial societies मतलब हम टाइम एरा की बात कर रहे हैं, ठीक? इंडस्ट्रियल सोसाइटीज मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वहाँ पे, उस टाइम पे राइज हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का. टिपिकली मार्क्स के टाइम पे आप चले जाओ, दीज वर टिपिकली इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, फैक्ट्रीज बेस्ड, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन था जहाँ पे वास्ट इनइक्वालिटीज थी. तो हम यहाँ देखते हैं कि वास्ट क्लास इनइक्वालिटीज थी. देयर वाज कॉन्ट्राडिक्शन और कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास, ठीक है. तो वर्ल्ड वाज पोलराइज्ड बिटवीन व्हाट? बुर्जुआ and capitalist on the one hand, proletariat and workers on the other hand, haves and have-nots. There was complete separation because there was vast class inequalities. There was complete polarization, right? एक तरफ prosperity थी, एक तरफ poverty थी, right? एक तरफ happiness थी, एक तरफ disease और slums थे, deprivation था, right? एक तरफ affluence थी, एक तरफ hunger था. तो world was polarized into two classes. तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स हो रहा था वो क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स हो रहा था, और यहाँ पे जो मूवमेंट्स भी हो रही थी, वो जो मूवमेंट थी ओल्ड सोशल मूवमेंट्स, दे आर बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड दिस क्लास पॉलिटिक्स, राइट? ठीक है. तो मूवमेंट्स क्या थी? दीज आर बेस्ड ऑन दिस क्लास पॉलिटिक्स. तो उस टाइम पे क्या थी? वर्कर्स मूवमेंट्स होती थी, राइट? ट्रेड यूनियनिज्म था, वर्कर्स मूवमेंट्स थी, या फिर पीजेंट मूवमेंट्स थी. पीजेंट्स को भी हम इन टर्म्स ऑफ क्लास ही देखते हैं, मार्क्सिस्ट स्पेशली, राइट? जो पीजेंट्स हैं, they were the dispossessed class, whereas landlords, they are seen as the enemies who are exploiting the peasants. So यहाँ पे वर्कर्स और पीजेंट मूवमेंट थी ओल्ड टाइम में, राइट? लेकिन यहाँ पे हमने देखा पॉवर्टी डिक्रीज कर रही है, मटेरियलिज्म बढ़ रहा है, वेलफेयर स्टेट का एक्सपेंशन और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंप्रूव कर रहे हैं. प्लस आप देखोगे यहाँ पे पोलराइजेशन इतना नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस एफ्लुएंस की वजह से, स्ट्रक्चरल मोबिलिटी की वजह से मिडिल क्लास एक्सपेंड हो गई है, राइट? प्रोलिफरेशन ऑफ मिडिल क्लास, वेबर टॉक्स अबाउट इट, with increasing bureaucratization and rationalization of society. तो एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास. तो यहाँ पे भी हमारी तीन क्लासेज नहीं है बल्कि मल्टीपल क्लासेज है. मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, देन रिच में भी दो क्लासेज में डिवाइड कर दो. रंग की इवन हमने पढ़ा था, राइट? जब हम क्लास एज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ रहे थे. तो यहाँ पे जो मूवमेंट्स हो रही है, राइट, जो कलेक्टिव एक्शन है, राइट, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव एक्शन, इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास. क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे रादर हमने पढ़ा था, अब लिंक करो इसको पकुल्स्की से, राइट? पकुल्स्की, दिस इज के पकुल्स्की, डेथ ऑफ क्लास. ही टॉक्स अबाउट डेथ ऑफ क्लास. ऐसा नहीं है क्लास बिल्कुल वैनिश कर गई है. डेथ ऑफ क्लास ही सेज इन टर्म्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज के बारे में पढ़ रहे थे, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहे थे. डेथ ऑफ क्लास मतलब क्लास इज नॉट रेलिवेंट एनीमोर. पीपल आर नॉट मोबिलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? class identities. They are not mobilized on the basis of class identities anymore, and rather people are mobilized on the basis of what? Status identities, right? Movement, politics and mobilization is not on the basis of class. तो अगर आपको जब मैं ये लेक्चर बना रहा था, right, when I was writing this down, I was able to form a linkage with Pakulski, but I did not remember his name, right? I remember the concept, but I forgot the name, right? So some students were asking whether it is essential for us to remember so many names. I always say कि you focus on the concept, right? मेरे पास कुछ ऑर्गेनाइज्ड नोट्स नहीं है, मैं पढ़ता हूँ और उस टाइम पे लेक्चर बनाता हूँ, राइट? प्लस यू हैव ऑलरेडी कंपाइल्ड नोट्स, यू विल बी गोइंग थ्रू देम अगेन एंड अगेन, राइट? ठीक है. प्लस मल्टीपल लेक्चर्स में आप मल्टीपल स्कॉलर्स को बार बार पढ़ेंगे. हम कितनी बार होब्स और लॉक और रूसो को पढ़ चुके हैं. सो आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू रिमेंबर नेम्स, राइट? प्लस आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे, टेस्ट सीरीज करोगे, अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू रिमेंबर दीज नेम्स, राइट? पर मेन फोकस शुड बी ऑन कंसेप्ट्स, राइट? वेदर यू विल बी एबल. अगर आप
क्वेश्चन में भी लिख के आते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, आप नाम नहीं लिखते पेगोल्स्की, दे टॉक अबाउट द डेथ ऑफ क्लास, वहां पे भी आप लिंक कर सकते थे, राइट। तो न्यू सोशल मूवमेंट्स आर शेप्ड बाय व्हाट, दे आर नॉट शेप्ड बाय क्लास पॉलिटिक्स एनीमोर, दे आर शेप्ड बाय व्हाट, स्टेटस, राइट। दे आर बेस्ड ऑन स्टेटस, they are driven by identity, there is a fight for identity, right. New social movements are shaped by the fight for rights, people are fighting for their rights, right. So it is not on the basis of economic criteria anymore, or economics is not the basis of social movements or dominant politics in society, right. तो यहाँ पे क्या है, driven by identity, they demand dignity, respect, choice, freedom, right. तो साइमन हॉल्सवर्थ बोलते हैं कि पहले क्वांटिटी ऑफ लाइफ पे थी, राइट, वेजेस इंप्रूव करना है, अब यहां पे है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, राइट। वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट, वी आर टेकिंग दिस स्टैंडर्ड फॉर लिविंग फॉर ग्रांटेड, वी आर ऑलरेडी प्रोग्रेसिंग इकोनॉमिकली, सो our aspirations, our economic aspirations are met, at least minimum aspirations are met. Now we are focusing on enriching our lives, gaining more and more rights, we are fighting for our identity, right. तो जब मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल, राइट, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होनी चाहिए। आप कैपिटलिज्म आ रहा है, आप इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, वी वांट टू लिव इन अ गुड सोसाइटी, वी वांट टू ब्रीथ क्लीन एयर एंड नॉट पोल्यूटेड एयर, राइट। बट एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट्स, राइट, तो दिल्ली में तो कुछ है नहीं स्टार्ट, राइट, देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन हियर। देन LGBT movements, right, we are focusing on what, expression of their status, their identity, their choice, right, that their sexuality should be recognized by the state, by the society, homosexuality, LGBT rights के लिए जो मूवमेंट होती है। ट्राइबल राइट्स, they are basically fighting for their identity, they are fighting against dispossession or displacement for their lands, they want to pursue their traditional lifestyles, right. तो जब ट्राइबल्स को आप यू रिमूव देम फ्रॉम देयर लैंड्स एंड व्हेन दे स्टार्टेड लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो उनका क्या होता है, डीकल्चरेशन होता है, दे लूज देयर आइडेंटिटी, सो दे आर फाइटिंग फॉर व्हाट, डीकल्चरेशन, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट डीकल्चरेशन, डिस्पोजेशन एंड लैंड एलियनेशन, दे आर फाइटिंग फॉर देयर आइडेंटिटी। फेमिनिस्ट मूवमेंट सिमिलरली फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, राइट, स्लट वॉक, मी टू, ऐसे ही एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट कोडनकुलम में जो हुआ था, ऐसे ही एनिमल राइट्स मूवमेंट्स, राइट, मूवमेंट वाज लॉन्च्ड और प्रोटेस्ट वाज लॉन्च्ड बाय पेटा अ फ्यू इयर्स बैक, राइट, अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ दिस फेस्टिवल जल्लीकट्टू, राइट, दे से it is against animal rights and it basically it is very torturous for animals who are participating in this sports festivals, right. ठीक है, सी पहले जो ओल्ड मूवमेंट्स थी दे वर बेस्ड ऑन मैक्रो पॉलिटिक्स, राइट, एक पॉलिटिकल पार्टी होती थी, राइट, वर्कर्स पार्टी वर क्रिएटेड, दे वर असाइन्ड द रोल टू फाइट फॉर वर्कर्स राइट्स, right, a central leadership was created, so there was a bureaucracy, political parties were division of work, हमने देखा था bureaucracy ही होती वो है, अब bureaucracy is not just pure bureaucracy जो आप देखते हो, it is also military bureaucracy भी हो सकती है, party bureaucracy, political party bureaucracy भी हो सकती है, आप bureaucracy को universities में भी देख सकते हैं, it is about standard division of labor, allocation of fixed tasks, allocation of authority to them, so these were based on what? These were based on bureaucracy, right? These were hierarchical in nature. These were driven by central leadership. And membership and fixed association was necessary. If you want to be a part of workers' movement, you need to be either be a part of a trade union, right? Or to be a member of a particular political party, right? So these were focused on what? Workers' party, trade union, right? और इसमें ज़्यादातर लोअर क्लास पीपल पार्टिसिपेट करते थे, ड्रिवन बाय मोबिलाइज्ड बाय द सेंट्रल लीडरशिप। तो यहाँ पे क्या है, आपको सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा, हिरार्की देखने को मिलेगी, राइट, ओल्ड पॉलिटिक्स है, क्लास पॉलिटिक्स है, राइट, जिसमें लोअर क्लास पार्टिसिपेट करेगी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी पार्टिसिपेटिंग, इनफैक्ट दे विल बी ट्राइंग टू मोबिलाइज द एंटायरिटी ऑफ द सोसाइटी, मास पॉलिटिक्स। और यहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल लीडरशिप आइदर इन ट्रेड यूनियंस और इन वर्कर्स पार्टीज। लेकिन जो न्यूअर मूवमेंट्स क्या है, रजनी कोठारी एक स्कॉलर हैं, राइट, इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ही सेज न्यू सोशल मूवमेंट्स आर नॉन पॉलिटिकल इन नेचर,
राइट, दिस दे लाई आउटसाइड द स्पेयर ऑफ ट्रेडिशनल और पॉलिटिक्स, राइट। यहां पे क्या है, लूज एसोसिएशन है मेंबर्स की। इफ आई वांट टू सपोर्ट एन LGBT cause or an anti-corruption movement, right, even if I do not get associated or be a participant of that movement, I can support it from outside. तो यहाँ पे लूज एसोसिएशन है, आई कैन बी अ सपोर्टर ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स, राइट, लूज एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स, दे डू नॉट नीड टू बी अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी और ट्रेड यूनियन। देन नो सेंट्रल लीडरशिप, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं देखती करंट मूवमेंट्स को, तो ये बोलते हैं दीज वर यहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप है, दीज कुड बी मल्टी हेडेड, there are so many organizations, right, or so many people who are fighting for transgender rights, so there is no one party or one central leadership, right. तो these were lower level of bureaucratization होता है इनका, right. ये anti hierarchical है, right, ये non violent और peaceful होती है these movements, basically they are seeking what, complete transformation of society, overthrow of capitalist state, तो these are revolutionary, where these are peaceful and non violent। यहां पे जनरली मिडिल क्लास ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स, यूथ, अनएम्प्लॉयड पीपल, दे पार्टिसिपेट हियर मोर, राइट, ठीक है। अगेन इट फोकस्ड ऑन व्हाट, ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट, मैक्रो इश्यू और मैक्रो पॉलिटिक्स पे फोकस था, रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज चाह रहा था, वेयरएज यहां पे क्या है, रिफॉर्मेटरी सोशल चेंज है। कैसे, सी दिस ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर जर्गन हाबरमास, न्यू सोशल मूवमेंट की बात करोगे तो आप इनकी बात करना। वो बोलते हैं कि दीज मूवमेंट्स हैव, ये बोलते थे नॉन पॉलिटिकल, तो से दीज मूवमेंट्स आर ड्रिवन बाय न्यू पॉलिटिक्स, राइट, एंड इट लीड्स टू व्हाट, वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पब्लिक स्फेयर, पीपल कम आउट ऑफ देयर होम्स, पीपल कम आउट ऑफ देयर प्राइवेट स्फेयर एंड दे इंक्रीजिंगली पार्टिसिपेट इन द पब्लिक स्फेयर, राइट, ऑफ सिविल सोसाइटी, ठीक है। इंक्रीज्ड एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक of people in public sphere, and they are concerned about the issues of the day, they are concerned about environment, they are concerned about these nuclear plants, they are concerned about the rights of women, they are concerned about the tribal rights, right. So this is, yahan pe bhi this was overthrow of state, this is also directed against the state authorities trying to extract some kind of concessions from them, right. तो यहां से क्या होगा, वहां पे ओवरथ्रो था सोशल ऑर्डर का, यहां पे क्या है, जो डेमोक्रेसी है उसको और डेमोक्रेटाइज करना है, सिविल सोसाइटी को और वाइब्रेंट बनाना है, राइट, पीपल को और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पब्लिक स्फेयर में, राइट। इट इज बेस्ड ऑन वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्टेट, और ये माइक्रो इश्यूज पे बेस्ड होती है, राइट। पर्टिकुलर इशू ट्रांसजेंडर राइट्स, वो पूरी सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश कर रही थी, राइट, क्लास को चेंज करने की कोशिश कर रही थी, पूरा का पूरा इकोनॉमिक सेटअप को, एग्जिस्टिंग सेटअप को, ये माइक्रो इश्यूज, राइट। तो रिफॉर्मेटरी होती हैं ये, right, either some will fight for environment, some for transgender rights, some for feminist movement, some for animal rights, तो इनके माइक्रो इश्यूज होते हैं, राइट, पर्टिकुलर थीम्स के साथ डील करती हैं, राइट। सो दिस वाज जर्गन हाबरमास, राइट।